जब हमने गैंग को पकड़ा तो उनके पास से हमको ऐसी 3000 करीब कंपनियाँ मिली एंड उन 3000 कंपनियों ने हज़ारों करोड़ के फर्जी बिल काट रखे थे. डेटा इज़ वेरी प्रेशियस एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर कि उनके नाम पे तो कोई कंपनी नहीं चल रही है या उनके नाम पे आधार पे कोई फेक सिम तो इशू नहीं हुआ है. पुलिस की जॉब इज़ नेवर एंडिंग. पुलिस इज़ अ नेवर एंडिंग एक्सरसाइज. ऑल्सो पुलिसिंग की जॉब भी कुछ वैसी ही है. सो ना सोने का टाइम फिक्स होता है ना उठने का टाइम फिक्स होता है. एंड वी कॉट वन बिजनेसमैन हु वाज changing his cities on a daily basis, was changing his car on a daily basis, who was changing his phone number on a daily basis, he was changing his phone also on a daily basis. So there is a number called 1930. I think इस नंबर को उतना ही पब्लिसाइज करना चाहिए जितना 112 को किया जाता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर और इतना इफेक्टिव भी है कि अगर आप अपनी समस्या बता रहे हैं और आईडी ट्रांजैक्शन आईडी नंबर बता रहे हैं तो उसके बाद आपका पैसा कहाँ मूव हुआ है वो उन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है इंस्टेंटेनियसली. Today with us we have Shakti Mohan Avasthi, a 2019 batch IPS officer from the Uttar Pradesh cadre. He is currently serving as the DCP in Noida and has previously served as the ASP in 2 districts, Muradabad and Azamgarh. In this episode of Sushasan, we will be delving into his journey of cracking the UPSC examination twice, his role in uncovering one of the biggest GST fraud cases that Uttar Pradesh has seen in the recent times, his involvement in providing the security arrangement for the MotoGP event held in 2023 in the Buddha circuit, and much more. Do watch out for this episode of Sushasan. A very warm welcome, Shakti, to this episode of Sushasan. It's indeed a pleasure having you with us today. थैंक यू. So, Shakti, आप 2019 में IPS officer बने, right? And if I recollect correctly, 2018 is also when you cracked the UPSC examination and was given the IRS services. And then you decided to give the exam again and became an IPS officer. So, my first question यही रहेगा कि what was the motivation, to get into the civil services at the first place, and then what was the drive towards giving the exam second time? So the main motive to join the civil services was कि public service was the most important motivation. But जब मैं कॉलेज से नौकरी लगी मेरी तो I was posted in Algeria. तो when you're posted abroad, आपको देश की याद ज़्यादा आती है और ज़्यादा देश के लिए काम करने का मन करता है. तो I think it acted as a prime motivator since I was working abroad. So I came back to the country again. I left the job. उसके बाद I full-fledged started preparing. एंड उसके बाद आई गेव द सेकेंड अटेम्प्ट जिसमें मेरा IRS इनकम टैक्स में हो गया. सो उसके बाद आई डिसाइडेड टू गिव द एग्जाम अगेन. सो फाउंडेशन कोर्स स्किप करके आई गिव द एग्जाम अगेन एंड उसके बाद आई वाज लकीली इन IPS. Great. Right, so we'll come to the success story of yours in cracking the exam twice, and we'll get into the nuances of UPSC preparation. But first up, would like to know your journey in the IPS. Till now it's been 5 years till your selection. Right, so IPS officers जब first time किसी services में जाते हैं, तो what is the first posting that they get, right? And what is the expectation from them upfront? So after approximately getting trained for more than an year, हमारी पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट्स में for 28 weeks अराउंड 7 महीनों के लिए. We are posted to districts and our post is ASP under training. ASP is Assistant Superintendent of Police, ASP. वहाँ पर उन 6 से 7 महीने में 3 महीने वी आर SHOs. तो वी आर गिवन ट्रेनिंग एज SHOs बिकॉज मोस्ट ग्रासरूट लेवल पे पुलिस डिपार्टमेंट में SHOs काम करते हैं. सो वी आर गिवन 3 months एज SHOs और उसके अलावा 3-4 महीने होते हैं उसमें वी आर गिवन एक्सपोजर ऑफ ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड विद इन द पुलिस एज वेल एज आउटसाइड. उसके बाद फिर जब हम लोग का ASP शिप जो अंडर ट्रेनिंग है जब वो ख़त्म होता है 7 महीने बाद, वी अगेन गो बैक टू द एकेडमी जहाँ पे फेज 2 होता है. वो अराउंड 2 से 3 महीने का होता है. देन वी आर बैक टू डिस्ट्रिक्ट्स एज रेगुलर ASPs असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. Okay. उसके बाद प्रमोट होते 1-2 साल में प्रमोशंस होते हैं. तो देन वी बिकम एडिशनल SP, then we become SP and then it continues. Okay. Right, so जब आप first time posted हुए थे, right, so how was the experience like, coming into a district?
No, was it overwhelming? इतने सारी responsibilities after a rigorous training that you were given. So the training is very rigorous as you अच्छा, said. okay. And उसके बाद when we come to the districts for the first time, we realize कि जो हम लोग ट्रेनिंग में पढ़ते हैं, एक्सपोजर जो है डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, हम लोग के एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होता है. सो जैसे हम डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं तो बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जनरली आईपीएस आता है, सो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को समझता है और इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली. उसके बाद जब एसएचओ हम लोग बनते हैं फिर धीमे धीमे हम लोग का चार्ज बढ़ता रहता है. सो यस, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस. Got it. What is a day looking like for an IPS officer once they are in the district? कैसा रहता है routine? सुबह कितने बजे से शुरू करते हैं? At what time does the day end for you? सो वैसे पुलिस की जॉब इज नेवर एंडिंग, पुलिस इज अ नेवर एंडिंग एक्सरसाइज, और सही बात. पुलिसिंग की जॉब भी कुछ वैसी ही है. सो ना सोने का टाइम फिक्स होता है ना उठने का टाइम फिक्स होता है, बट हाँ ब्रॉडली स्पीकिंग वी वेक अप एट अराउंड 7:30. पहले हम लोग जितने भी हमारे अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे हम लोग ब्रीफिंग लेते हैं कि पिछले दिन में क्या हुआ, एंड देन वी रिपोर्ट इट ओवर सीनियर बाई अराउंड 8. उसके बाद 8 के बाद हम लोग जनरली मतलब कोई योगा चाहे कर सकता है या मेडिटेशन और जिम, बिकॉज वो टाइम थोड़ा सा 8 से 9 का टाइम इज अ लिटिल रिलैक्स्ड. आफ्टर 9:30 वी हेड बैक टू आवर ऑफिसेज, एंड 10 सवा 10 बजे के बाद से जन सुनवाई जो होती है उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है. सो वी आर कंटिन्यूसली इन दैट अंटिल 2:30. उसके बाद वी गो आउट इन द फील्ड, बिकॉज कभी ना कभी कोई कोई घटना हो जाती है या कोई मीटिंग्स होते हैं या कोई असाइनमेंट्स होते हैं, या हम लोगों ने कुछ कुछ प्लान किया होता है विद सम और द अदर कम्युनिटी. सो ऐसा करते रहते हैं. इसके बाद इवनिंग में वी गो फॉर पेट्रोलिंग फॉर चेक्स, और शाम को खास करके वी हैव एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस इन दी प्लेसेस, ताकि क्योंकि इस समय लोग ज़्यादा निकले होते हैं तो विजिबिलिटी ज़्यादा होती है फोर्स की. सो वी गो एट अराउंड 7:30. उसके बाद जनरली वी कम बैक बाई 8:30. और अगर कोई घटना या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो सो हमारा डे वहाँ जनरली 9 सवा 9 तक ख़त्म होता है. बट अगेन वी नेवर नो, कई बार हम लोग को मॉर्निंग में 6 बजे भी उठना पड़ता है. अब जैसे अभी एक ये फेस्टिवल आने वाला है, सो वी बी आउट बाय 4:30 ऑन दैट डे. उसके अलावा भी कभी कभी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं जनरली नाइट में, तो वी हैव टू गेट अप अर्ली. सो हम लोग का फ़ोन कभी बंद नहीं होता, इट्स ऑलवेज ऑन. और उस चक्कर में वी हैव टू गेट अपडेट्स ऑल्सो, तो जॉब का रिक्वायरमेंट भी है और उससे ही हम अपडेटेड भी रह पाते हैं. तो इट्स अ नेवर एंडिंग एंड टीडियस जॉब, बट वेरी सेटिस्फाइंग जॉब. या तो मैं देखा था कि जैसे आप आए थे यहाँ पे शूट के लिए भी, तो यू आस्क्ड फॉर द वाईफाई फॉर बोथ द फोन्स. आई Yes. थिंक प्रोबेबली बिकॉज यू वांटेड टू बी कनेक्टेड, Yes, yes, कि कभी कुछ because हो सकता है. अगर नेटवर्क फोन में नहीं भी आएगा तो somebody can give a WhatsApp call and Correct, I'll be correct. connected. या That's it. मेक सेंस. राइट. सो आपने जन सुनवाई की बात करी, तो क्या होता है, थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ जन सुनवाई और किस किस टाइप की चीजें डिस्कस होती है उसमें. So जन सुनवाई is in English literally it means public hearing. उसमें जनरली जो पब्लिक के लोग हैं जिनकी समस्या का समाधान पुलिस थाने स्तर पे या हम लोग के नीचे स्तर पे नहीं हो रहा है, वो आते हैं. तो हम लोग उनकी समस्या सुनते हैं और करस्पॉन्डिंगली हम लोग जिस भी ऑफिसर के पास उनको रिडायरेक्ट करना हो तो रिडायरेक्ट करते हैं, या ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसमें ये चीज़ें करनी है. सो ये जन सुनवाई का एक जनरल परफॉर्मा होता है और इनवेरिएबली लोग आते ही हैं. और उसमें मॉर्निंग के टाइम पे जनरली 10 से 2 तक जन सुनवाई का टाइम रहता है. इसमें वी ऑल आर इन द ऑफिसेस. सो आपने बताया आई थिंक कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स ऑफ द रूटीन जो शायद रोज में ही होते हैं, जैसे जन सुनवाई हो गई, आपके सुबह का टाइम हो गया जिम वगैरह का, एंड कुछ कुछ आप जो शाम को करते होंगे. बट जैसे आपने बताया कि कुछ एग्जिजेंसी सिचुएशंस भी या फिर एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन भी अराइज हो जाती है. सो कोई ऐसे इंस्टेंसेस यू वुड लाइक टू कोट जहाँ पे एकदम से आपको कॉल आया एंड यू हैड टू बी ऑन योर टोज एंड रिस्पॉन्ड क्विकली. लॉट ऑफ इंसिडेंट्स एक्चुअली, हर हफ्ते ही ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, ना चाहते हो. राइट. लाइक फॉर एग्जांपल इफ मॉर्निंग में 6:30 के टाइम पे क्योंकि सनलाइट होती है, तो बहुत बार कोई घटना अगर रात में होती है तो वो सुबह ही दिखती है. जैसे अगर कोई अनफॉर्चुनेट मर्डर हुआ तो रात में क्योंकि अंधेरा होता है तो दिखता नहीं, जैसे उजाला होता है लोग घर से निकलते हैं तो सूचना आती है कि देयर इज अ डेड बॉडी लाइंग और देयर इज सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैज हैपेंड. और इफ हाउस ब्रेकिंग हैज अकर्ड तो वो सुबह ही पता लगती है जनरली, जब लोग रियलाइज करते हैं उठ के कि हाउस ब्रेकिंग हुई है. सो वो जो टाइम होता है मॉर्निंग का, स्पेशली 6 आफ्टर सनलाइट, वहाँ पे अक्सर ही हम लोग को कॉल आता है तो वी हैव टू रश टू दैट स्पॉट इफ इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके अलावा भी रात में भी या कई बार ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कि कई बार वीआईपी मूवमेंट बहुत ही कम टाइम पे होता है, बिकॉज नोएडा है तो नोएडा में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं
कई सारे ऑलमोस्ट मीडिया इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे हैं, काफ़ी वीआईपीज रहते भी हैं. सो समबडी और द अदर इज कमिंग एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. कभी किसी वीआईपी की हॉस्पिटल विजिट अगर हो गई, या अगर कोई मीडिया हाउसेज है, तो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज कम टू द मीडिया हाउसेज फॉर देयर इंटरव्यूज. तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें भी बहुत सारी लगी रहती हैं. कई बार कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में कभी कभी कोई टसल हो जाता है, तो उसमें भी अगर हम लोग को रात में अगर घटना हो गई, तो वी हैव टू बी देयर ऑन द स्पॉट, क्योंकि जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे उतनी जल्दी वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा. एंड देयर इज नो रीजन टू प्रोलॉन्ग एनीथिंग. सो हम लोग ऐसे कई होते ही रहते हैं, मतलब. राइट, आई एम श्योर. सो हम जनरली जो आम जनता है उनको आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में आजकल मूवीज में बहुत दिखता है. आपके डिफरेंट दबंग है या सूर्यवंशी है. सो इज इट एक्चुअली दैट उस टाइप का पोर्ट्रेल असली में होता है, या इज इट ओवर द टॉप दिखाया जाता है? व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन? I think movies and all the cinemas are reflection to some sense. कुछ हद तक तो उसमें सच्चाई होती है, बट कुछ एग्जैजरेशन भी होता है. अभी रिसेंटली खाकी बिहार डायरीज आया था, आई थिंक इट वाज वेरी नियर टू व्हाट एक्चुअली हैपेंस ऑन द फील्ड. उसके अलावा भी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गुड मूवीज आर बीइंग मेड, serious movies are being made on the life of police officers, on the life of crime and those who are solving the criminals, catching the criminals. तो उसमें भी हम लोग ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो रियलिटी होती है, बट हाँ, बहुत चीज़ें ओवर द टॉप भी हैं. परहैप्स वो रिक्वायरमेंट है सिनेमा की, बट अगेन इट्स अ मिक्स. So I see a lot of changes and positive changes in the cinema and its depiction of the police in the recent years. Right. All right, all right. So now let's come to some of the postings that you have had, right? So आप ASP रहे in Moradabad and also Azamgarh, right? So in a time in Azamgarh, एक बहुत ही जो viral news रही है has been you setting up a library for the different aspirants there. So can you tell us a little bit more about कि ये library का क्या उद्देश्य था और अभी आजकल वो कैसा perform कर रही है? So unfortunately, across the last few years and decades, Azamgarh has not been in news for good things. So me and the SP sir वहाँ पे अनुराग sir, we had an idea कि क्यों ना एक लाइब्रेरी स्टार्ट करते हैं, which would be free of cost to the students of not just the police families but also outside. So we had some funds, तो उसमें we decided कि क्यों ना एक काफ़ी बड़ा एरिया था. एंड सिंस आई हैव स्टेड इन दिल्ली ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, सो आई हैड सीन a lot of libraries and a lot of my friends used to go to those libraries to study, and उसके इम्पैक्ट भी बड़े पॉजिटिव होते थे. सो खास करके जैसे पुलिस की फैमिलीज में, क्योंकि घर बहुत छोटे होते हैं, या इतने बड़े नहीं होते कि बच्चे अलग से एक कमरे में रह पाए. सो वी डिसाइडेड कि क्यों ना एक 50-60 बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी तैयार करते हैं, विच इज़ वेरी मॉडर्न. वहाँ पे वाईफाई होगा, वहाँ पे एसी होगा, वहाँ पे रोज न्यूज़पेपर्स आएंगे रोज, और कैबिन्स बने होंगे जैसे कि दिल्ली की लाइब्रेरीज में होता है, ताकि एकांत माहौल में वो पढ़ाई कर पाए. And I think it's been very successful. It was taken very positively by the not just local media, but I think the entire national media. And abhi I recently went for one of the official works. So I think I went at around 1:30 in the afternoon. जो मुझे लगा कि इस समय बच्चे नहीं होंगे क्योंकि स्कूल होता है. But it was almost full, and I was very heartened to see कि and it was taken very very positively. So I think it's one initiative which was very very successful. And बाकी जगह भी, even when I was in Azamgarh only, we also started a clinic for the police personnels. I think it has also been running very successful. So ऐसे छोटे छोटे हम लोग initiatives करते रहते हैं. उसके अलावा भी जैसे a lot of police officers including me, we are constantly into career guidance of youngsters, of school going children. तो apart from policing, ये सारे aspects हैं जिसमें हमें लगता है कि larger good of the society जहाँ possible होता है, and then if the larger good of the society is happening, crime and crime reduction में अपने आप ही फर्क आ जाता है. राइट, आई थिंक एक इससे रिलेटेड टॉपिक है कम्युनिटी पुलिसिंग का, राइट? सो इफ यू कैन काइंड ऑफ शेड सम लाइट ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिटी पुलिसिंग, एंड जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स दिए वो, या इसके अलावा और किस टाइप के इंटरवेंशंस कैन बी डन अंडर दैट पर्टिकुलर एम्बिट? So community policing is the need of the hour. अभी काफ़ी टाइम से कम्युनिटी पुलिसिंग के काफ़ी इनिशिएटिव्स सभी स्तर पे चल रहे हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ स्पेशली नोएडा, वी डू समथिंग कॉल्ड पुलिस आपके द्वार, वेयर वी गो टू ईच एंड एवरी सेक्टर, एंड वहाँ के जो भी RWA है या अपार्टमेंट एसोसिएशंस हैं उनके साथ टाइप करके वी हैव अ सेशन विद देम इन 1.5-2 घंटे का सेशन, वेयर वी एजुकेट देम अबाउट साइबर crimes. We also educate them about different laws of the police, how can they exercise their rights, and then listen to their problems, solving it on the spot. उसी तरीके से गांव में जब हम लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं,
तो there is something called Jan Chaupal. So where we go to the villages and we solve the issues in that village itself. So instead of people coming to the police, we encourage police going to the people. तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव चलते रहते हैं. स्टूडेंट पुलिस कैडेट का एक इनिशिएटिव पूरे यूपी में चलता है. इसमें स्कूल्स के साथ टाई अप करके हम लोग कम्युनिटी प्रोग्राम्स कराते हैं. सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नाउ व्हिच आर बीइंग डन फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग. उसी तरीके से स्कूल्स के साथ टाई अप करके, कॉलेज के साथ टाई अप करके वहाँ पे हम लोग सेशंस लेते हैं. बिकॉज द आइडिया इज कि पुलिस के साथ पुलिस से डरना उन लोगों को चाहिए जो अपराध करे. अदरवाइज तो पुलिस सबके दोस्त है. और 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपराध तो कोई नहीं करते बल्कि पुलिस स्टेशन की शक्ल भी नहीं देखी होती, इंक्लूडिंग मी. मैं भी जब फर्स्ट टाइम नौकरी में आया तभी मैंने पुलिस स्टेशन देखा कैसा होता है. सो हम लोग का ऑब्जेक्टिव, लार्जर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पुलिस से केवल अपराधियों को डरना चाहिए. ओनली क्रिमिनल्स शुड बी अफ्रेड ऑफ द पुलिस. सो उसी ऑब्जेक्टिव में फॉर ग्रेटर कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड ग्रेटर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अमंगस्ट द पीपल हम लोग एक इनिशिएटिव करते थे. एग्जाम्पल, अभी बोर्ड के एग्जाम्स रिजल्ट आए और भी एग्जाम्स के रिजल्ट आए. सो लॉट ऑफ सोसाइटीज वी वर कॉल्ड टू फेलिसिटेट द स्टूडेंट्स. We also invited a lot of toppers of different exams to be felicitated in our own campus. तो ऐसे initiatives करके it helps in community engagement and ultimately helps in police. राइट. आई थिंक इससे एक और चीज़ जो निकल के आएगी इस कि क्योंकि FIRs कम लोग करते हैं क्योंकि डर लगता है लोगों को पुलिस थाने में जाने से. सो आई थिंक विद दीज इनिशिएटिव्स पीपल विल स्टार्ट टू कंसिडर देम एज फ्रेंड्स एंड देयरफॉर डू दैट. ऑल्सो जैसे अब हम सभी लोगों के जो सरकारी नंबर होते हैं वो यूपी पुलिस की वेबसाइट पे पड़े होते हैं. राइट. सो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कॉल ऑफिसर्स एंड दे विल पिक अप. तो इट्स अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट विद दैट पर्सन and get your work done and get your genuine demands fulfilled. So Shakti, you are currently serving in Noida as DCP, right? And क्योंकि vicinity है to Delhi, तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी लाइमलाइट में रहता है. तो एज एन इंडिविजुअल हु वाज सर्विंग इन द पुलिस देयर, क्या चैलेंजेस आपको फेस होते हैं विद अ लॉट ऑफ फोकस इन दिस पर्टिकुलर एरिया? It's a very different place to work. Urban areas are very different from the working in rural areas, and Noida is the most urban place one can imagine. तो proximity of Delhi and proximity to Haryana border भी कई जगह लगता है नोएडा का. तो एक interstate होने की वजह से we see a lot of times crime and criminals are moving away to those places, जो एक challenge create करता है. उसी तरीके से a lot of VIP movements occur in Noida because Noida being the hub of national media. Almost all the media outlets are based in Noida. We have a lot of VIP movements in Delhi. So there's always, so Noida is always on alert mode. Ki it's a neighboring district, so everything has to be quiet and peaceful here. So इस तरह के बहुत सारे challenges हैं. I think with the media attention that Noida gets, there are a lot of times, I'm sure you and your colleagues face cases जहाँ पे बहुत celebrities हों या influencers हों, इन लोगों के ऊपर cases होते हैं. So उसमें क्या sensitivities रहती हैं? How do you guys kind of address such situations जहाँ पर there might be a lot of followers kind of backing a particular person, but there are allegations against that person, and you have to be fair as a police individual. So उस पे कैसे आप करते हैं? So for us, अगर कोई normal person हो या कोई celebrity भी हो, for us, if somebody has committed a crime, he or she is a criminal. If otherwise they are a regular civilian to us. But again, because कई बार बहुत ज़्यादा मीडिया का अटेंशन होता है, so we have to be very careful कि हम लोग कोई ऐसी information divulge गलती से भी ना करें which is not related to the case. So also then we also ensure कि सारे processes, सारे चीज़ें बहुत ही कायदे से follow हो. क्योंकि मीडिया स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग केवल केस से जुड़ी हुई बातें डाइवर्ज करें. अदरवाइज lot of things are in the media which might not be related to the case. So we try to be very, very professional, especially in high profile cases. And नोएडा वगैरह में अर्बन एरियाज में तो काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं which are very high profile. So हम लोग कोशिश करते हैं कि we are very, very professional in our approach. And हम लोग केस से जुड़ी हुई चीज़ें we try to keep it very in a very professional manner. So इसी में बहुत बार मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड एंड दे हैव सो मच फॉलोइंग, एंड कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी जस्ट टू गेट सिंपैथी. तो उसके लिए इज देयर एनी SOP दैट द पुलिस फॉलोज? आर देयर सर्टेन मेजर्स दैट द पुलिस टेक्स अप? So there are SOPs related to who can brief the media. Okay. What is to be briefed in the press note. Press note में क्या आएगा, जो मीडिया में हम लोग के द्वारा बाइट आएगी उसमें क्या आएगा. सो उसके लिए गाइडलाइंस बनी है, DG सर्कुलर बने हुए हैं, कई सारे शासन से पत्र
जारी हुए हैं तो उनको फॉलो किया जाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी मिस्टेक कभी भी किसी भी ऑफिसर के द्वारा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो गलत हो। प्लस कई बार ऐसी कोई चीज़ अगर आती है मीडिया में जो गलत होती है तो हम लोग उसका खंडन भी करते हैं। सो देन वी टेल दैट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कि ये न्यूज़ आपकी गलत चल रही है, तो हम लोग प्रोएक्टिवली हम लोग कई बार मीडिया हाउस में खुद ही फ़ोन करके बताते हैं कि आप जो न्यूज़ चला रहे हैं ये हमारे वर्जन में भी नहीं है और ये फैक्चुअली गलत है। सो दिस इज जनरली अ स्टैंडर्ड थिंग विच वी डू। Got it, got it. So थोड़ा I think in your current posting itself last year पे चलते हैं जब Moto GP organized हुआ था इंडिया में and there was a lot of news and lot of buzz around that event. बुद्धा सर्किट में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था and I remember because I visited that place as an audience member and it was an enthralling experience. बहुत मजा आया था. There was a lot of cheering, a lot of excitement. And I remember you being in your official duty posted there, drafted there to take care of security of the whole situation. So as an police personnel, because आपके साथ आपके और colleagues and full battalion must be there, तो कैसा experience था आप लोगों का? कैसा what were the challenges that you faced there, being such a big event for India essentially? So MotoGP was not I don't think it was national, it's an international event. Yeah, exactly. Lot of I think there were 40 odd drivers from different countries. मीडिया जो फॉरेन मीडिया भी बहुत ज़्यादा थी, ऑडियंस भी बहुत सारी जो थी जो इंडिया के बाहर से थी. लॉट ऑफ VIPs वर देयर. लॉट ऑफ VIPs केम एज अ ऑडियंस इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज फ्रॉम बॉलीवुड एंड स्पिरिचुअल दुनिया से भी काफ़ी लोग आए थे. प्लस ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर दे ऑल विजिटेड. प्लस उसी के दिन साथ ही साथ एक्सपो मार्ट भी चल रहा था जस्ट a few kilometers from that place. So it was a very difficult but a very learning and a very rich experience. Again, it's one of those events which is once in a lifetime events. And जो उसकी तैयारियां भी होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल तरीके से करनी पड़ती हैं. सो MotoGP was a very learning experience. हम लोग के लिए जो मेजर चैलेंजेस थे तो ऑल द ड्राइवर्स के को कभी भी कोई इशू ना हो, इंक्लूडिंग रूट में, ट्रैफिक में, सिक्योरिटी में. उनकी गाड़ियाँ जो है वो उनमें कोई इशू ना आए, उनको जो सामान की सप्लाई चाहिए होती है उनमें कभी कोई इशू ना आए, सारे VIPs सेफ रहे, सिक्योर रहें. बिकॉज आपने देखा हुआ जैसे वहाँ पर जो बड़े स्टैंड्स हैं दे आर ह्यूज. 100 मीटर से लंबे लंबे स्टैंड्स होते हैं इन जगह में और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा होती है. सो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि किसी ऑडियंस को कोई इशू ना है. इट वॉज इन सेप्टेम्बर सो देयर वॉज हीट, तो कोई हीट के द्वारा इशू ना आए. एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है towards those who are the organizers, towards the people who are selling the tickets, who check the tickets, all the vendors, the drivers and their team, police, public. So a lot of stakeholders are there in these events. And कई बार because of operational issues कई बार ऐसा हो जाता है कि conflicts आते हैं, तो हमारा काम होता है कि to resolve any conflict for the smooth conduction of the event. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको याद हो इसके पहले के सालों में जब फॉर्मूला 1 वगैरह हुआ तो ट्रैफिक वॉज बिकेम अ ह्यूज नेशनल न्यूज़, बट दिस टाइम इट वाज नॉट अ न्यूज़ एट ऑल. तो हम लोगों ने काफ़ी इसके भी अरेंजमेंट्स किए थे. जैसे हम लोगों ने गूगल मैप से बात की थी कि कौन से रूट्स शो करने हैं. मैप इंडिया से बात हुई थी, ऊबर और ओला से बात हुई थी कि कहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होंगी ताकि जाम ना लगे, क्या क्या किस के क्या क्या रूट्स रहेंगे. सो हम लोगों ने ऐसे काफ़ी प्रिपरेशंस किए थे जिसमें ट्रैफिक एक हैसल बिल्कुल ना बने. और वो लकीली वी वर वेरी सक्सेसफुल इन दैट वे कि देयर वर 2 इवेंट्स पैरेलली हैपनिंग. सो मल्टीपल इवेंट्स थे. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो विजिटेड इन वन ऑफ द इवेंट्स. CM आल्सो विजिटेड. सो लॉट ऑफ पीपल विजिटेड. इट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस. तो कितने समय पहले से प्रिपरेशन शुरू हो गई थी फॉर द इवेंट फ्रॉम द साइड ऑफ पुलिस की सिक्योरिटी का पूरा? जैसे आपने बताया इट्स अ ह्यूमंगस एक्सरसाइज ऑफ कॉन्टैक्टिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, चाहे गूगल मैप्स हो, चाहे वो ओला उबर हो, एंड आई एम श्योर अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो. सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम एटलीस्ट 6 months बिफोर एटलीस्ट. और उसके तब से हम लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग से उनके इश्यूज समझने का प्रयास करते हैं. और खास करके कैमरेज का एक पूरा कंट्रोल रूम सेटअप होता है. अलग अलग रूट हो है तो अलग अलग रूट के अलग अलग कैमरे सेटअप होते हैं, वो इंटीग्रेट होते हैं ताकि अगर कहीं भी ट्रैफिक का इशू हो रहा है तो वी मस्ट बी क्लियर कि क्या डाइवर्जन किया जा सकता है. सो मतलब कम से कम 6 months, बट एनीवे इट्स अ ऑल ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज.
So Shakti, regarding the MotoGP event, आपने बताया कि बहुत सारी challenges आपने face करे and preparation बहुत पहले से शुरू हो जाती है, but still you know कुछ ना कुछ on the day events होते हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें फटती हैं। तो उसमें कोई एग्जांपल्स अगर आप दे सकें, कुछ एनेक्डोट दे सकें जहाँ पर कुछ गड़बड़ें हुई या कुछ चैलेंजेस फेस किए आप लोगों ने, एंड देन देयर वाज एन प्रॉम्प्ट एक्शन टू रिजॉल्व इट। सो एक बार इट वाज इन सितंबर, तो सितंबर में काफ़ी गर्मी होती है और ह्यूमिड सा वेदर रहता है। तो एक रूल था वहाँ पे कि कोई भी अपनी वाटर बॉटल ले आ नहीं सकता, बट दिस इज इट वाज ह्यूमिड एंड लोग के पास पूरे पूरे दिन के पासेस होते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल कि कोई भी पर्सन, और जो वाटर बॉटल्स बाहर मिलती भी हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सो देयर वाज दिस थिंग इन द क्राउड कि हाउ विल वी हैव वाटर। तो फिर व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि जो बीच में एक छोटा सा एरिया था, वी सेड कि वहाँ पे वाटर डिस्पेंसर्स लग जाएंगे एंड वाटर डिस्पेंसर्स के साथ लोग तुरंत पानी पी लें और वहीं पे ग्लासेस को डिस्पोज कर दें, वही डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं एंड देन दे कैन कम बैक। तो उसमें वो भी इशू खत्म हो गया था कि वेरी एक्सपेंसिव वाटर्स एंड वेरी फार अवे, प्लस जो सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए जो वाटर बॉटल्स अलाउ नहीं होती और जो ऑर्गेनाइज के द्वारा मना की गई थी, तो इट वाज इन अ वे रिजॉल्व। उसी तरीके से आई थिंक इट वाज सेकंड डे ऑफ द MotoGP when it started raining. It was not just raining, it was raining very heavily और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जब बारिश होती है तो फिर ड्राइविंग रुक जाती है, और ड्राइविंग रुकना तो इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, ऑल द एरिनाज विच वर देयर, वहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, गेम्स चलते रहते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं। इट्स अ इकोसिस्टम इन इटसेल्फ, बट इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। सो वी हैड टू स्टॉप एवरीथिंग, काफ़ी उसको मैनेज किया, देन वी हैड टू वेट फॉर क्वाइट सम टाइम। उस दिन पूरा हम लोग का रूट भी पूरा टाइम भी मॉडिफाई करना पड़ा था, और काफ़ी लेट उस दिन डे भी ख़त्म हुआ, क्योंकि रेसेस जो होती हैं वो दिन में ही ख़त्म करनी होती हैं सारी। नेक्स्ट डे की रेसेस अगले मॉर्निंग 9 बजे शुरू हो जाती हैं, सो वो मैनेज करना वॉज वन सच एक्सपीरियंस। ऐसी बहुत सारी कंटिजेंसीज आती रहती हैं विच हैव टू बी सॉल्व बाई इमोशनल इंटेलिजेंस देन एंड देयर। राइट। Last day, I remember also that a lot of celebrities came. John Abraham was there. Chief Minister Yogi Adityanath was there, and there were other ministers and celebrities also present. So उस दिन आपको कोई दिक्कतें फेस हुई? उस दिन कुछ ऐसी स्पेशल कंसिडरेशंस आपको लगे कि ये ध्यान में रखना है, सो दैट थिंग्स डू नॉट काइंड ऑफ गड़बड़ ना हो कोई भी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सबसे ज़्यादा होता है कि अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो उसका आना, उसका जाना, उसका पैसेज, उसका स्टे सेफ रहे, और कभी भी क्राउड की तरफ से, जनता की तरफ से कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। जैसे हम लोग कई बार क्रिकेट मैचेस में देखते हैं कि लोग जंप करके स्टेडियम में आते हैं, तो हम लोग सबसे बड़ा तो चैलेंज ये होता है कि द VIP शुड बी सेफ, और अंटिल दे आर विद अस दे शुड आर कम्प्लीटली सेफ। तो वो प्रायोरिटी रहती है हमारी, एंड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग द नेम्स यू ऑल सेड, उसके अलावा भी कई सारे बॉलीवुड स्टार्स आए थे, कुछ स्पिरिचुअल गुरु भी आए हुए थे। तो वो सब चीज़ें, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, तो हम लोग उसकी तैयारी रखते हैं। वी हैव अवर सेफ हाउसेज ऑल्सो, जहाँ पर उन लोग का स्टे रहता है, तो वी हैव, वो हम लोग का स्टैंडर्ड ड्रिल रहता है एक, तो हम लोग उसको फॉलो करने का पूरा प्रयास करते एंड मुझे लगता है कि रोज सुबह कोई ना कोई ड्रिल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मस्ट बी हैपनिंग, सो उसका क्या प्रोसेस रहता था आपका? व्हाट वाज द रूटीन लाइक? सो देर आर इंचार्जेस एट डिफरेंट लेवल। तो हम लोग के लेवल पे वी आर इन चार्ज ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर थिंग, बट हम लोग के अंडर COs होते हैं, साइकिल ऑफिसर्स होते हैं, उनके नीचे इंस्पेक्टर्स होते हैं। सो द सिस्टम इज कि वी टेक द ब्रीफिंग फ्रॉम आवर जूनियर्स, जूनियर्स टेक द ब्रीफिंग फ्रॉम देयर जूनियर्स। सो अगर हम जो टॉप मोस्ट लेवल पे अगर ब्रीफिंग समय से स्टार्ट हो जाती है, और अगर वी स्टार्ट टेकिंग स्टॉक ऑफ दिस सिचुएशन, then everything falls back into place. So for the first 1 hour, 2 hours, if we are very active and if we are taking stock of everything, including attendances, including what each people is doing, and most important thing is briefing. अगर हम लोग समय से सबकी ब्रीफिंग कर दें, एंड इफ पीपल आर अवेयर कि उनको करना क्या है, व्हाट आर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई थिंक चीज़ें बहुत ही ईजिली चल जाती हैं। तो हम लोग मॉर्निंग से ही जल्दी निकल के हम लोग शुरू से चीज़ें सेट कर देते, ताकि बाय द टाइम आफ्टरनून कम्स एंड जब पब्लिक आना स्टार्ट होती थी, तो इट वाज फॉर द पब्लिक, इट वाज हैसल फ्री। So now deviating from the topic of MotoGP, काफी interesting and I think experience रहा था आपके लिए, and I'm sure for all the viewers also.
Most recently, you have been in the news for a GST fraud case जो काफी नोएडा में I think पकड़ा गया था. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि what exactly happened, कितना quantum था इस particular GST fraud का, and what was the actions taken. So this case which we cracked was one of the biggest cases ever in history of Uttar Pradesh police. So it started as an identity fraud, but when we investigated the case, it was much more than an identity fraud. इसमें we found कि there was this gang which was misusing the PAN number of common people. तो उनके पास काफ़ी लंबा पैन का डेटाबेस था. उस पैन का डेटाबेस से वो शेल कंपनीज बनाते थे. शेल कंपनीज बनाते थे और उन लोगों के नाम पे बनाते थे जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पे शेल कंपनीज चल रही है. सो वन पर्सन who came to us, he told that उनके नाम पे 2 कंपनियां चल रही हैं और we thought कि it's an identity fraud, maybe some rival is trying to कोई राइवल होगा जो उनको डिफेम करना चाह रहा हो या कुछ तो देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग. फिर हमने पाया कि जब हमने गैंग को पकड़ा तो उनके पास हमको ऐसी 3,000 करीब कंपनियां मिली एंड उन 3,000 कंपनियों ने हज़ारों करोड़ के फर्जी बिल काट रखे थे और उनके पास करीब 7 लाख पैन का डेटाबेस था. वो डेटाबेस किसी किसी वेबसाइट से लीक हुआ था. So then we contacted around 3,000 कंपनियां थी तो we contacted those people जिनके नाम पे फर्जी कंपनियां चल रही थी. Nobody was aware कि उनके नाम पे ऐसी कंपनियां चल रही है पर उनके नाम पे टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी. उन कंपनियों के बिल कट रहे थे, बिल में GST क्लेम हो रहा था. सो देन वी फाउंड आउट कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बिल कटे हैं. अगेन फ्यू 1,000 करोड़ के ITC सरकार के द्वारा उनके द्वारा क्लेम किया गया है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज और विदाउट पासिंग इट टू दी अदर डिस्ट्रीब्यूटर. एंड ये एक सिस्टमिक फ्रॉड चल रहा था जो हम लोगों ने एक्सपोज किया. उसके बाद इट बिकेम अ ह्यूज न्यूज़. हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स को अपनी इंटेल और इन्फॉर्मेशन और जो भी हमें डेटाबेस में था भी हमने शेयर किया. तो उसके बाद काफ़ी एजेंसीज आई, उन्होंने भी पूछताछ करी. लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स गॉट इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर कंट्री. और उसके बाद फिर हमने धीमे धीमे इसमें क्रैकडाउन स्टार्ट किया एंड अब तक ओवर 50 पीपल हैव बीन एप्रीहेंडेड एंड कॉट बाय अस. रिसेंटली इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगा है. तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग केस. इससे सबसे बड़ी लर्निंग हमने ये सीखी कि जो डेटा है, डेटा इज़ वेरी प्रेशियस एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर कि उनके नाम पे तो कोई कंपनी नहीं चल रही है या उनके नाम पे आधार पे कोई फेक सिम तो इशू नहीं हुआ है. बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब लोग दुकान पे जाते हैं सिम लेने तो उनको उंगली से स्कैन कराया जाता है. कई बार 2 बार करा लेते हैं तो दुकान वाला 2 सिम इशू कर लेता है कई बार. तो सबको ध्यान रखना चाहिए कि उनके नाम पे कोई कंपनी ना चल रही हो, उनके नाम पे कोई सिम ना चल रहा हो, क्योंकि इस तरह के सिम ही हर फ्रॉड में मिसयूज होते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, आइडेंटिटी फ्रॉड हो या चाहे फोर्जरी की फ्रॉड्स हो. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग अपना डेटा को सिक्योर रखें. अपने डेटा का एक्सेस किसी को भी इजीली ना दें. अगर किसी वेबसाइट्स में अगर आप वो लॉगिन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अनवांटेड डेटा ना दें. अगर उनको डेटा शेयर करना है तो मिनिमम डेटा शेयर करें. खास करके पैन इज़ अ वेरी सेंसिटिव डेटा जिसको कभी शेयर ना करें. आधार इज़ अ वेरी सेंसिटिव डेटा, उसको शेयर ना करें क्योंकि कई बार वेबसाइट्स में लीकेज होते हैं और उसके बाद उनका सारा ही डेटा डार्क वेब पर या अदरवाइज भी नेट पे अवेलेबल हो जाता है. तो उसका बड़ा ध्यान रखें. इट वॉज अ बिग केस विच वी क्रैक्ड. इसके लिए हम लोगों को रिकग्निशन भी काफ़ी मिला and it was all across the news and it was one of the most difficult but also one of the most learning and very rich experience for us. So आपने बताया कि लोगों को देखते रहना चाहिए कि उनके नाम पे कहीं कंपनीज ना रजिस्टर्ड हो और कोई फेक सिम्स या फर्जी सिम्स ना यूज हो रहे हो. सो कैसे पता कर सकती है जनता अबाउट बोथ ऑफ दिस थिंग्स, अगर इसके बारे में बताएं थोड़ा. So it's there on the websites of GST only. So anybody आप अगर नेट पे डालें कि चेक माय पैन नंबर फॉर एनी फर्म, तो GST नंबर में 15 नंबर 15 डिजिट का होता है. 10 तो पैन ही होते हैं. शुरू के 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट स्पेसिफिक कोड होता है. 3 जो बाद वाले होते हैं वो यूनिक होते हैं. तो कोई GST नंबर अगर हम देखें तो हम पता कर सकते हैं वो किस पैन पे है. तो वो तो आप GST की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. सिमिलरली आधार पे भी अगर आप आधार की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ डाल सकते हैं कि चेक विच नंबर्स आर लिंक टू माई आधार. तो आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आपको OTP आएगा. उसके बाद यू कैन चेक कि आपके आधार पे कितने फ़ोन नंबर्स रजिस्टर है. तो ये काम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और क्योंकि अदरवाइज़ बिना किसी गलती किए पुलिस
क्योंकि जब हम लोगों पर डेटा आता है तो हम लोग के पास आता है कि किसका फ़ोन नंबर है, उस पर किसकी आईडी लगी है, तो पहला शक उसी पे आता है जिसकी आईडी लगी होती है। तो टू अवॉइड एनी सच ट्रबल, टू अवॉइड एनी पुलिस एक्शन, ये काम इन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन भी है, और उसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अपनी आईडी या कोई अपना डेटा को मिसयूज ना दे। दिस इज नॉट नहीं, आई थिंक वेरी वेरी गुड इनसाइट दैट यू हैव गिवन। लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके नाम पे कंपनियां चल रही हैं या सिम कार्ड इशूड हैं। So I think very good to keep regularly checking on the websites that you have mentioned. We'll put the website link also in our description so that all our viewers can also go and check all these details. Now अगर इसी केस के बारे में और डिस्कस करें कि ये जो GST फ्रॉड केस रहा, तो अगर थोड़ा नुआंसेस में जाएं, स्पेसिफिक्स में जाएं कि तो आपको पता चल गया था कि ये दिक्कतें हो रही हैं, सो व्हाट इज द एक्शन दैट वाज टेकन, कैसे छापे मारे गए या कैसे लोगों को पकड़ा गया? अगर उसका थोड़ा इनसाइट्स आई थिंक व्यूअर्स वुड लव टू नो दैट। सो जितना अभी somebody was telling me from the media that कुछ प्लान हो रही, कोई सम OTT में कुछ प्लान भी हो रहा है इस पूरे केस को लेकर। सो आई डोंट नो, ऑफिशियली मुझे नहीं पता लगा, बट दिस वाज इन द न्यूज़। So it's a very interesting case, and each and every arrest has a story in itself. जैसे इस पूरे केस में 3 लेयर्स थे इसके। सबसे पहला लेयर था उन लोगों को जो ऐसी फर्जी कंपनियां बना रहे थे, who were making these shell companies. Second was those people who were cutting the bills on the name of these fake companies. And third were those people who were purchasing those bills and purchasing these fake companies. So in companies की cost was around 30-40,000 for one firm. तो वो इस तरीके से चेन, तो फर्स्ट वी कॉट द चेन जो ऐसी कंपनियां बना रहे थे, दे वर अराउंड 10 odd people. देन वी कॉट अराउंड 20 people जो इन कंपनीज के बिल काट रहे थे। तो बिल काटने के लिए उन लोग की लॉगिन आईडीज थी जो उन्होंने किसी किसी और नंबर से बना रखी थी, और उसके बाद उन्हीं आईडीज को मिसयूज करके लॉगिन करके वो बिल्स काटते थे। देन वी कॉट दैट गैंग विच वॉज अराउंड 20 odd people. उसके बाद हम लोगों ने अराउंड 10-15 ऐसे लोग पकड़े who were those businessmen who were misusing these bills in their transactions. जैसे if they are doing 100 genuine transactions, they would incorporate these 15 fake bills to offset these tax liabilities. So again, we caught those businessmen who were stealing GST and were also misusing these firms जिनकी जो forgery से बनाए गए थे. So these are the 3 chains which we caught. Every story is different, मतलब कोई एग्जांपल दे जरूर अगर हो। but again we caught one businessman who was changing his cities on a daily basis, was changing his car on a daily basis, who was changing his phone number on a daily basis, he was changing his phone also on a daily basis. Oh my god. Because they were very very affluent. तो it was very very difficult to catch. So हम लोगों ने अपनी टीम्स भी काफी टाइम से निकाली हुई थी हम लोगों ने, they were all across there were several places. सो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल भी होता है, बट अगेन परसिस्टेंस था, तो वी वर एबल टू कैच देम सक्सेसफुली। उसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे अक्रॉस दी कंट्री इसमें अरेस्ट हुए हैं, कई स्टेट्स में अरेस्ट हुए हैं, कई सिटीज़ में अरेस्ट हुए हैं। तो हम लोग पूरी रात वेट करते रहते थे कि कुछ इनपुट आएगा, तुरंत इन्फॉर्मेशन दूसरी एजेंसी से मंगाएंगे, कोई अगर टेलीकॉम से ज़रूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन मंगाई जा रही है। So everything was a challenge, and it's very difficult to catch white collar criminals. But then again, that's the beauty of the policing, कि हम लोग उनको successfully पकड़ पाते हैं। Right. So जैसा आपने बताया कि अलग-अलग states में coordination की जरूरत पड़ी थी, तो how challenging that becomes, कि आप यूपी पुलिस से हैं and then सब जगह लोग हैं, they can just fly from one city to another in the different states. So again, one of the good things about all India services is कि हम लोग के जो batchmates होते हैं, they are all across the country. अगर बैचमेट नहीं है भी हैं तो 1-2 साल सीनियर जूनियर बैचेस के लोग भी आपको ऑल अक्रॉस द कंट्री मिल ही जाते हैं। तो इसमें भी जब हम लोग अपनी टीमें भेजते थे तो ये ज़रूरत पड़ती थी। एंड सिमिलरली होता है, दूसरे स्टेट्स की पुलिस भी हमारे स्टेट्स में आती है तो हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं। तो इट वर्क्स एज अ 2-way स्ट्रीट्स, प्लस हमारे पर्सनल इंटरकनेक्शंस होते हैं। वी आर ट्रेन टुगेदर, हम लोग 150-200 लोग एक साथ ट्रेन होते हैं, तो वी हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट बॉन्डिंग एंड अ वेरी गुड वन। तो वो ऐसे केसेस में बहुत हेल्प होती है इन दीज केसेस विच आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक अदरवाइज। नीचे इंस्पेक्टर के लेवल पे उनको नहीं पता होता कि हरियाणा में पुलिस में कौन कहाँ पे है, बट सिंस वी हैव अ बैचमेट्स पोस्टेड तो हमको उसकी बहुत हेल्प मिलती है। एंड नॉट जस्ट इन द पुलिस, अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इवन से GST
जैसा ही केस था, तो वी टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट, कई सारे बैचमेट्स थे, और इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स और इन द अदर अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, जो हमारे बैचमेट्स अलग सर्विसेज में होते हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। तो दैट ट्रेनिंग एंड दैट कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अदर वेज इवन आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि द वेब ऑफ नेटवर्क दैट यू क्रिएट बीइंग इन ऑल इंडिया सर्विसेज, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, रेवेन्यू सर्विसेज है, सो आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट इन दीस हेल्प्स अ केसेस, लॉट एंड नॉट जस्ट विद इन द सर्विसेज, इंटर सर्विसेज। इंटर सर्विसेज आल्सो। क्योंकि जिस तरीके से आजकल क्राइम चल रहा है, हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रोल सब जगह आ जाता है, और अक्रॉस दी बैचेस भी ये ज़रूर एक चीज़ रहती है कि टू हेल्प अदर्स, और जनरल ऑब्जेक्टिव सभी का होता है पब्लिक सर्विस का, सो वी ट्राई टू वर्क एज अ टीम। और उसमें बैच बॉन्डिंग, और जो हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं, साथ में फाउंडेशन कोर्स करते हैं, साथ में 1.5-2 साल की ट्रेनिंग होती है, करते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग द जॉब। राइट। आई थिंक आपने एक चीज जो बोली जिससे मेरे को एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, इज दैट द नेचर ऑफ क्राइम इज चेंजिंग, राइट? एंड आजकल साइबर क्राइम आल्सो हैज काइंड ऑफ कम अप अ लॉट, एंड चाहे वो आजकल फोन कॉल हो करके +92 के पाकिस्तान नंबर से, कभी +1 के नंबर के यूएस के नंबर से, इंडिया के नंबर से भी ये फेक कॉल्स आती हैं, कुछ रिकॉर्डेड होते हैं, फेडेक्स में आपका ये कुछ कंसाइनमेंट कहीं फंस गया है, एंड पीपल आर लूजिंग मनी, लैक्स मनीज, थाउजेंड्स ऑफ मनीज, एंड आई आल्सो सॉ कि आपने सोशल मीडिया पे यू पुट अ थ्रेड ऑफ ट्वीट जहाँ पर आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बताए हैं। तो फॉर आवर ऑडियंस, इफ यू कैन टेल अस what are some of the most common cyber crimes that you have seen lately happening, जो हो सकता है लोगों को पता भी ना हो आजकल, and people are just getting into it, right? I think it will be great for awareness in general, and then we can kind of see कि उनको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं as a citizen. सो मॉडस ऑपरेंडी चेंज होते रहते हैं, बट एक जनरल प्रिंसिपल ये रहता है कि मॉडस ऑपरेंडी उन चीज़ों का ज़्यादा कॉमन रहता है जो उस समय लाइव होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में आप देखेंगे कि आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, ऐसे मैसेज आते हैं। अगर कभी कोविड की वेव आती है, तो फ्री कोविड टेस्ट और फ्री लैब रिपोर्ट या फ्री कोविड वैक्सीन के मैसेज आते हैं। अगर आईपीएल चल रहा होता है, तो बेटिंग के या आईपीएल के पासेस के मैसेज आएंगे आपको। सिमिलरली विंटर्स होगा, तो उसमें भी हीटिंग अप्लायंसेस के मैसेज आएंगे। तो वो एक एवर चेंजिंग चीज़ें हैं। अल्टीमेटली व्हाट द फ्रॉडस्टर्स ट्राई इसकी वो आपकी अटेंशन ग्रैब करें। अटेंशन ग्रैब तब होती है जब वो ऐसी चीज़ को बताते हैं जो आपकी अटेंशन उस समय ग्रैब करेगी। तो ये एक जनरल ट्रेंड रहता है। आजकल जो मैंने जैसा डाला, जो थ्रेड डाल रखा है, तो उसमें देर आर अराउंड 40-45 फ्रॉड्स तो डाल रखे हैं, बट देर एवर चेंजिंग, सो हम लोग भी अपडेट होते रहते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज हमको लगता है वो है डिजिटल अरेस्ट का। वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस इन द सेंस कि उसमें दे क्रिएट अ फेक पुलिस स्टेशन, दे क्रिएट अ फेक पुलिस यूनिफॉर्म, एंड उन्होंने पूरा सेटअप रेडी किया होता है, एंड देन दे ऑल्सो क्रिएट फेक CRPC नोटिसेस, एंड उसके बाद वो कहते हैं कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए, यानी कि आप यहीं बैठे बैठे अरेस्ट हो गए, और अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे या आप यहाँ से कहीं जाएंगे तो वील कम एंड अरेस्ट यू। सो आप ऑनलाइन ही रहिए, एंड देन वो घंटों ऑनलाइन रखते हैं, उस बीच डराते हैं, एंड पैसे भी काफ़ी ऐंठ लेते हैं पुलिस के नाम। और ये सबसे बड़ा आई थिंक आजकल जिससे इट्स बिगेस्ट चैलेंज जो इस समय चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना अवेयरनेस फैला सकें फैलाएं। उस तरीके से सेकंड जो मुझे लगता है बिगेस्ट आजकल जो चल रहा है वो है कोरियर और कस्टम्स के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है। Correct. बहुत ही ज़्यादा उसका प्रचलन है। उसमें वो बोलते हैं कि हम कस्टम अथॉरिटी से बात कर रहे हैं एयरपोर्ट से, और आप एक गिफ्ट कोरियर आया है आपको, उस कोरियर में इतने करोड़ों का कोरियर है, पर उसको आपको 1% आपको एज अ ड्यूटी देना पड़ेगा। तो लोगों को लगता है कि चलो 1% दे देते हैं, बाकी पैसा मिल जाएगा। बट वो कुछ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के नेशनल्स मोस्टली उस फ्रॉड को कमिट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने रिसेंटली कई सारे फ्रॉडस्टर्स पकड़े भी हैं, और वो एक बड़ा फ्रॉड है जो आजकल हम लोग होते देख रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग एक जो वीडियो कॉल जिसका आपने जिक्र किया, बड़ा ही वो कॉमन फ्रॉड है। हम लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस भी फैलाई है, अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी आजकल हो रहा है। उसमें अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है, और वहाँ पर एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा होता है। इस वीडियो में कुछ अश्लील चीज़ें होती हैं, और बिकॉज व्हेन समबडी हैज़ टेकन अप द वीडियो कॉल, तो उसका चेहरा दिखने लगता है, उसमें स्क्रीन पे नीचे बन के आता है। तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं फ्रॉडस्टर्स, और उसके बाद उस वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि हम यूट्यूब से बोल रहे हैं, या कभी बोलते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, या कभी बोलते हैं कि हम
किसी पर्टिकुलर IT सेल से बोल रहे हैं, एंड देन दे एक्सटॉर्ट मनी, एंड ये नेवर एंडिंग होता है, क्योंकि इफ दे नो कि ये पैसा दे देगा तो उसको परेशान करते रहता है। तो इन सब का सोल्यूशन एक ही है कि इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो पुलिस के पास आप आ जाइए। पुलिस से डरने की ज़रूरत केवल क्रिमिनल्स को है, कॉमन पब्लिक को नहीं। सेकेंडली ये याद रखें कि देयर इज़ नो फ्री लंच। कई बार लोग लोभ में, लालच में आके कई डिस्काउंट में या कुछ फ्री चीज़ के चक्कर में फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं। और तीसरा होता है भय। कई बार डर डर के कि बिजली कनेक्शन कट जाएगा, या ये एक्सटॉर्शन होगा, या हम डिफेम हो जाएंगे, या आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो डर में भी ना आए। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो डरने की जरूरत भी नहीं है, और अगर आप डर भी रहे हैं तो भी पुलिस के पास आना बेटर है, क्योंकि वी डील विद क्राइम एंड क्रिमिनल्स ऑल थ्रू आउट द डे एंड नाइट। तो हमें पता होता है कि इस समय लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं। सो एक हम लोग की इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है ओवर द ईयर्स, एंड उसका आप पब्लिक को फ़ायदा उठाना चाहिए पुलिस के पास आकर। तो अगेन कुछ गलत नहीं किया तो बिल्कुल पुलिस के पास आइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो देर आर सो मेनी वेज आजकल जिसमें आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। आप पुलिस के पास आ सकते हैं। आप केवल सोशल मीडिया पर अपने डाउट डालेंगे तो दे हम इतना आजकल अवेयरनेस चल रही है कि समबडी विल गिव अ वेरी इंटेलिजेंट आंसर इवन ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आप पुलिस को टैग करेंगे तो पुलिस इनवेरिएबली ईच एंड एवरी ट्वीट पर, फेसबुक पोस्ट पर रिप्लाई करती है, हर चीज़ को संज्ञान में लेती है, हर चीज़ को कॉग्निजेंस में लेती है। ईच एंड एवरी ईमेल इज टेकन सीरियसली। सो अगर आपको लगता है तो आप ईमेल डाल दीजिए, somebody will contact you from the police, so everything is taken very seriously। इंटरफेस आजकल काफ़ी चेंज हो गया है, एप्स बन गई हैं, पुलिस की एप्स बन गई हैं, उन ऐप्स पे टाइम बाउंड मैनर पे आपको समाधान मिलता है। एग्जांपल के तौर पे जो पुलिस सर्विसेज हैं, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो गया, या अटेंडेंट वेरिफिकेशन हो गया, हम लोग का टारगेट 15 डेज का होता है। 15 डेज में वी हैव टू रिजॉल्व इट एनी हाउ। तो आजकल जो राइट टू गेट अप्रूवल चीज़ें हो गई हैं, सो टाइम बाउंड चीज़ें हो गई हैं, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ऐप्स पे मूव करें। आजकल कोई भी पर्सन FIR वगैरह ऑनलाइन निकलवा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बस थोड़ा अवेयरनेस की कमी है और थोड़ा पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन की कमी है, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। नहीं, काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने कुछ एग्जांपल्स भी दिए अबाउट द काइंड ऑफ क्राइम्स व्हिच आर काइंड ऑफ क्वाइट प्रेवलेंट। एंड आपने मेंशन किया कि आप पुलिस के पास जा सकते हैं, ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं, राइट? बट जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि आई थिंक आई ऑल्सो पर्सनली वेंट थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली अ फ्रॉड बट समवन ट्राइंग टू कमिट अ फ्रॉड एंड जस्ट आई वांटेड टू रिपोर्ट ऑन इट कि दिस हैज हैपेंड। इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ फ्रॉड था कि आपका, आई थिंक वन ऑफ द फोन कॉल आई हैव एनकाउंटर्ड 2-3 टाइम्स दैट आपका इंश्योरेंस जो है पिछले 10 साल पहले का था, आप 50,000 रुपये दीजिएगा तो आपको पूरा पूरा पैसा 1.5 लाख रुपए हम वापस कर देंगे, ऐसे टाइप की कुछ कुछ भी कॉल्स आती हैं। आई जस्ट वांटेड टू रिपोर्ट इट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे रिपोर्ट करें ऑनलाइन पे। सो व्हेन आई केम अक्रॉस दी साइबर क्राइम का, आई थिंक वेबसाइट भी है एंड ऐप भी है, सो उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं कि हाउ डज वन अप्रोच देयर, व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज जिसमें सिर्फ साइबर क्राइम रिलेटेड रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं? सो देयर इज अ नंबर कॉल्ड 1930। ओके। आई थिंक इस नंबर को उतना ही पब्लिसाइज करना चाहिए जितना 112 को किया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, और इतना इफेक्टिव भी है कि अगर आप अपनी समस्या बता रहे हैं और ट्रांजैक्शन ID नंबर बता रहे हैं, तो उसके बाद आपका पैसा कहाँ कहाँ मूव हुआ है वो उन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है इंस्टेंटेनियसली। ओके। तो 1930 इज द नंबर विच शुड बी पब्लिसाइज टू ईच एंड एवरीबडी। हम लोग स्कूल्स में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पोस्टर्स लगवाते हैं 1930 के, सोसाइटीज़ में लगवाते हैं, क्योंकि लोग के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो लोग पहले बैंक जाते हैं, या लोग पहले थाने पे जाते हैं, या अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है 1930 पे डायल करें। एक बार आपकी शिकायत वहाँ दर्ज हो जाएगी तो आपके पैसे फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आप पुलिस के पास, थाने आ सकते हैं, आप किसी ऑफिसर के पास जा सकते हैं, आप बैंक के पास, आप कहीं भी जा सकते हैं। बट सबसे पहले आपको 1930 पे डायल करके अपनी समस्या बतानी है, और अपना ट्रांजेक्शन ID, कितने पैसे गए हैं, कहाँ गए हैं, वो बताना है, ताकि पैसा फ्रीज हो जाए। इसके पहले कि फ्रॉडस्टर्स उस पैसे को ATM से कैश में विड्रॉ कर ले, उसके पहले आप उसको फ्रीज करा दीजिए। तो 1930 इज द नंबर। और उसी तरीके से साइबर हेल्पलाइन भी है, cybercrime.gov नाम से वेबसाइट भी है, उस पर भी जाके अपनी समस्या लिखवा सकते हैं आप। तो वहां से भी आपका इमीडिएटली फ्रीज हो जाते हैं। ओके। इमीडिएटली फ्रीज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी साइबर क्राइम के सॉल्व करने के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो पैसा फ्रीज हो जाए, दूसरा क्रिमिनल पकड़ लिया जाए। क्रिमिनल पकड़ना, क्योंकि जनरली इंटरस्टेट क्राइम्स होते हैं, तो क्रिमिनल पकड़ना टेक्स टाइम, बट पैसा फ्रीज होना इज द मोस्ट इमीडिएट चीज।
तो इसलिए 1930 को लगाइए। उसके अलावा स्पैम के लिए भी आजकल सरकार ने एक वेबसाइट स्टार्ट की है जहाँ पे आप स्पैम नंबर्स को, जहाँ से आपको लगातार कॉल आए, उनको रिपोर्ट कर सकते अच्छा अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक दिस इज वेरी हैं। तो हाँ, इंटरेस्टिंग। तो उसमें एक वेबसाइट सरकार ने शुरू करी है। उस पे आप अपने स्पैम, जो भी आपको जो स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं, या इमिडिएटली आपको अगर आपने कहीं साइन अप नहीं किया फिर भी कॉल आ रहे हैं, तो आप उसको रिपोर्ट करिए। वो फिर सरकार अपने स्तर पे उसको ऑल अक्रॉस द कंट्री बंद कर देती है। ओके। और एक्शन भी लेती है कि ये कि आपने कैसे इनको कॉल किया। तो ये भी अभी पिछले आई थिंक 6 महीने से ये वेबसाइट भी स्टार्ट हो गई है। वहां पर आप स्पैम नंबर्स को जरूर ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है बोथ, क्योंकि आई थिंक यही सबसे बड़ा दिक्कत होती है कि भाई रिपोर्ट कहाँ करेगा, स्पैम कॉल आ रहा है, और अगर गलती से भी आपने पैसे दे दिए भ्रम में आकर के, तो उसको पैसा कैसे बचाएं अपना। तो इसमें बस एक ये है कि कितनी जल्दी किसी को, मतलब ऑब्वियसली एएसएपी इज द राइट आंसर, बट तब भी कुछ होता होगा ना कि इतने दिन के अंदर या इतने घंटों के अंदर आप रिपोर्ट कर दीजिए इसके नंबर के अंदर या ऑनलाइन, तो सो दैट ट्रांजैक्शन फ्रीज हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन होने के 3-4 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर रहा है तो 100% फीस हो जाता है। ओके। मैं 2014 की बात करूं, मेरे फादर के साथ एक फ्रॉड हुआ था 22,000 रुपए का। तो मैंने किसी ऑफिसर को अप्रोच नहीं किया, कुछ मैंने नहीं किया। आई जस्ट वेंट टू अ साइबर सेल, लखनऊ में था उस समय में, और विद इन फ्यू आवर्स पैसे वापस आ गए। अच्छा। बिकॉज आई न्यू कि कहाँ सही जगह जाना है। दिस इज 2014 आई एम टॉकिंग अबाउट। उस समय साइबर थाने भी बहुत ही रेयर हुआ करते थे। तो अगर आप 3-4 घंटे में भी रिपोर्ट करें तो आपका 100% पैसा वापस आ जाएगा। पैसा वापस फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद वापस आने में वो एक कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो होता है, तो वो कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो होगा, वो कोर्ट मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर देता है, उसके बाद पैसा रिलीज हो जाता है। बट पैसा फ्रीज होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इफ समबडी इज कंप्लेनिंग विद इन 3 to 4 आवर्स, आप मान के चलो कि आपका पूरा पैसा रिटर्न हो सकता है। बट प्रॉब्लम साइबर फ्रॉड की ये होती है कि इट हैपेंस व्हेन समबडी इज अंडर सम इल्यूजन। अदरवाइज कोई जल्दी पैसा तभी देता है जब उसको कोई इल्यूजन होता है। वो इल्यूजन डर का भी हो सकता है, वो इल्यूजन कोई लोभ लालच का भी हो सकता है, और या किसी और चीज का भी हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि जो डिलीवरेबल्स साइबर फ्रॉडस्टर बोल रहा है वो आपको देगा, और उस उम्मीद में उनको लगता है कि उनको रियलाइज 2-3 दिन बाद होता है कि ये फ्रॉड है। ये कोई डिलीवरेबल्स आपको इसमें मिलने वाले नहीं है, ये कुछ भी फ्री नहीं है, या ये पुलिस वाले जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं नकली है। ये पता लगने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं, बिकॉज पीपल आर अंडर सो मच इल्यूशन in the entire cyber frauds. One thing about cyber fraud is कि they are completely preventable. Unlike other heinous crimes जो आप न्यूज़ में देखते हो, अगर लोगों को पता है कि ये फ्रॉड इस तरह फ्रॉड हो रहा है, या लोगों को पता है कि हमको डर में नहीं आना है, या जैसे बहुत लोगों के साथ कभी साइबर फ्रॉड नहीं होता बिकॉज दे आर अवेयर। तो इसीलिए साइबर फ्रॉड की अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस अवेयरनेस के बाद उसका प्रिवेंशन रेट इज ऑलमोस्ट 100%। अगर इफ समबडी इज अवेयर कि साइबर फ्रॉड नहीं होने देना है या किस तरीके से हो रहा है, तो आप 100% बच सकते हो उससे, अनलाइक अदर क्राइम्स। इसीलिए साइबर फ्रॉड इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल, एंड इसीलिए इसकी जागरूकता होना और अवेयरनेस होना इज वेरी क्रूशियल। उसके लिए आई थिंक ऑल द एजेंसीज इंक्लूडिंग योर्स, इंक्लूडिंग मीडिया, ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि उसका अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन की कब रिपोर्ट करना थे, तो विद इन 3 to 4 आवर्स एंड रिपोर्ट करें। इवन अगर आप 1-2 दिन बाद भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपके पैसे, कुछ तो पैसे वो निकाल लेंगे, बट अदरवाइज भी जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे पैसे फ्रीज होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। गॉट इट। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है कि as soon as you get to know कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, क्विकली रिपोर्ट करें, तो चांसेस ऑफ रिकवरी आर मैक्सिमम। ऑल्सो बहुत बार लोग कंसल्ट नहीं करते एक दूसरे से पैसे भेजने के पहले। अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, या अपने किसी दोस्त को बताएंगे कि देखो ऐसा हो गया, तो ही माइट टेल यू कि नहीं भाई ये फ्रॉड है। और इफ किसी ऐसे आदमी से बात करेंगे, किसी यंगस्टर से बात करेंगे हु इज मोर टेक सेवी, वो बता देगा कि नहीं ये फ्रॉड है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक दूसरे से बात करते रहें। उससे भी काफी फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता है। नहीं, आई थिंक ये सही बोला आपने कि अपने पे भरोसा रखें, अपने फैमिली वाले पे भरोसा रखें, क्योंकि बहुत बार तो ये भी हो रहा है पेरेंट्स को कॉल आ रहे हैं कि आपका बेटा थाने में अरेस्ट हो गया है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो आई थिंक ओपन चैनल कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स टू सो दैट ये एक्सप्लॉइट ना हो सके, एंड जागरूकता रखना। एंड देन ऑब्वियसली अगर कुछ आपको कुछ शक हो रहा है तो पूछ लें आप किसी अपने यंगस्टर दोस्त या किसी अपने फैमिली मेंबर से एसेंशियली। ऑल्सो जैसे एक बड़ा कॉमन फ्रॉड है जिसमें लोग कॉल सेंटर, किसी कंपनी का कॉल सेंटर कॉल नंबर डालते हैं और कई सारे नकली नंबर आ जाते हैं। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप उस ऐप, उस जो भी वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो उसके आप ऐप पर जाएं, ऐप पे कॉन्टैक्ट पे जाएं, तो वो ई कॉमर्स वाले आपको खुद कॉल करते हैं। आजकल अब ये स्टार्ट हो गया। तो कोई भी अच्छी अच्छी कंपनी जो है आजकल, खास करके ई कॉमर्स की कंपनी या कोई भी सर्विस डिलीवरी वाली कंपनी,
उनके जो कॉल सेंटर्स के नंबर होते हैं वो दे देमसेल्व्स कॉल यू, तो इसलिए ये सब चीज़ों से बचे। अगर पॉसिबल हो, अगर कोई आप बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो एक बार आप बैंक में फिजिकली चले जाएं, अगर आप वेरीफाई करना हो कोई चीज़ को। तो इस तरीके से थोड़ा सतर्क रहें। सही बात है। सो शक्ति, आपने बताया कि जो स्पैम जितने भी कॉल्स आते हैं या अटेम्प्ट्स होते हैं उसके ऊपर, सो उसको रिपोर्ट करने की वेबसाइट थी, तो नाम अगर आप बताएं फॉर आवर व्यूअर्स इट विल बी ग्रेट। चक्षु उसका अच्छा, नाम है, ओके चक्षु पोर्टल, CHAKSHU, ओके। चक्षु, नयन जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो उस पे आप स्पैम नंबर, स्पैम कॉल्स भी रिपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा कई बार हमें पता लग जाता है कि ये फ्रॉड है, बट बिकॉज वी आर अवेयर, तो हम लोग उस फ्रॉड को कमिट खुद के साथ नहीं होने देते। तो अगर आपको ऐसा कुछ सस्पिशियस नंबर भी लग रहा है जिससे आपको रेगुलरली वीडियो कॉल्स आ रही हैं या कॉल्स आ रही हैं या एक्सटॉर्शन के मैसेज आ रहे हैं, तो आप उस नंबर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं चक्षु पे। ओके। तो वो नंबर भी ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक भी हो जाएंगे। उसके अलावा उनकी उन जहाँ जहाँ पे वो नंबर लोकेटेड है वहाँ पे रिपोर्ट भी चली जाएगी। अच्छा, तो चक्षु पोर्टल एक नया पोर्टल सरकार के द्वारा कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है, और इसकी अवेयरनेस भी पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसका भी लिंक हम विद ऑल द डिफरेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे फॉर आवर व्यूअर्स। सो नाउ शक्ति, हम लोग ने डिस्कस कर लिया आपका पूरा जर्नी एज एन आईपीएस ऑफिसर इन द लास्ट 5 years, राइट। बट थोड़ा पीछे चलते हैं, राइट। इन द टाइम जब आप शायद दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे थे, आई थिंक आपने मेंशन किया था कि आप यू आर इन वेरियस लाइब्रेरीज, आपने विजिट किया था उस समय। सो वुड वांट टू नो कि हाउ वाज योर जर्नी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन लाइक, एंड स्पेशली क्योंकि आप बीआईटी मेसरा से आपने बीटेक किया है, राइट। सो एज एन इंजीनियर कमिंग इनटू a field जहाँ पे एकदम नए सब्जेक्ट्स हैं, right? What were the various challenges upfront that you faced? सो मेरा जो ऑप्शनल था इट वाज पॉलिटिकल साइंस, Okay. दो आई एम अ सिविल इंजीनियर, बट क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के लिंकेजेस काफ़ी होते हैं सभी जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ, एसए के साथ, इंटरव्यू के साथ, प्लस इंटरेस्ट था। तो आई थिंक ऑप्शनल लेने के बाद सबसे पहला चीज़ इंटरेस्ट होती, तो आई टुक द इंटरेस्ट एज द प्रायोरिटी, और फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया। चैलेंजेस इतने मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये तैयारी मुझे ऐसी लगी विच वॉज लाइट बाई मी ऑल थ्रू आउट। जब मैं सोच रहा था कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम ऐसा है जो भविष्य में दे सकता हूँ मैं, तो ये सबसे मुझे लगा कि मोस्ट सूटेबल है मेरे लिए, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो पढ़ने में मेरे लिए सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे उनमें ही आता है। आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक रीडिंग, स्टडिंग हिस्ट्री मोर देन आई लाइक से फिजिक्स। तो आई थिंक वो बाद में तैयारी में रिफ्लेक्ट भी हुआ वो। तो एक तो चैलेंज इस मामले में कम चैलेंजेस थे, अदरवाइज एग्जाम चैलेंजिंग है, नो डाउट, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, नो डाउट। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स थे विच मुझे पढ़ने पसंद थे, तो वो जर्नी मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजी रही। सो शक्ति, इसमें फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी देखते हैं, and बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे हैं अभी कि यूपीएससी देना है कि नहीं देना है, तो कैन यू जस्ट टेल फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन क्विकली व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जामिनेशन? आपने बताया इंटरव्यू भी होता है, मीन्स भी होता है, तो इफ यू कैन जस्ट स्ट्रक्चरली टेल व्हाट आर द स्टेजेस, एंड देन वी कैन गेट इनटू हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑफ देम एसेंशियली। सो स्ट्रक्चर इसकी सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख पीपल अप्लाई फॉर इट और 6-7 लाख पीपल सिट ऑन इट। एंड उसके बाद वो उनमें से करीब 15,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं मेंस लिखने के लिए। उस मेंस 15,000 बच्चों में से करीब 2500 बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, और अराउंड 1/3 ऑफ देम, 800-900 बच्चे डिपेंडिंग ऑन सीट्स, वो सेलेक्ट होते हैं। तो दिस इज अ ब्रॉड एग्जाम पैटर्न। और जीएस में जो पहला पेपर होता है, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसमें दो पेपर आते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज़ का और एक होता है सीसैट का। जनरल स्टडीज़ में जैसा कॉमनली बोला जाता है कि एनीथिंग अबव एंड बिलो द सन कैन बी आस्क्ड, सो दिस इज समवॉट ट्रू आल्सो, कुछ भी पूछ लेते हैं, बट इट हैज़ अ स्पेसिफिक सिलेबस जिसमें साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, 6 सब्जेक्ट्स, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट्स हैं। और सीसैट में मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, नंबर्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब अ, ये दो हैं जिसमें आपको सीसैट तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, बट जीएस जो होता है वो कंपैरेटिव नंबर होते हैं, और जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं उसमें जो टॉप 15,000 पीपल होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। और सीसैट में आपको 1/3 मार्क्स विच इज 66 आउट ऑफ 200 लाने होते हैं, ताकि आप आपकी दूसरे वाले पेपर जीएस की कॉपी चेक हो, तो या आप एलिजिबिलिटी आपकी बने। तो ये एक ब्रॉड है। उसके बाद मेंस होता है, मेंस में 9 पेपर होते हैं, 9 में एक ऐसे का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, और एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक पेपर आपकी रीजनल लैंग्वेज का होता है। तो इन माई केस इट वॉज हिंदी। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू अराउंड आधे घंटे का होता है विथ 5 पैनलिस्ट।
और वो एक अलग एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका बायोडेटा है उससे काफ़ी सवाल आते हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगा जो मैं पिछले सवाल में बोलना भूल गया कि लाइफ में सक्सेस के लिए मुझे लगता है कि एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आप कितना उस चीज़ में आप शिद्दत से या मेहनत से काम कर रहे हो। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी केवल वो लोग करें जो लोग जेन्युइनली इस तैयारी को एंजॉय करें। अगर आप तैयारी को एंजॉय नहीं करेंगे तो अ, ऐसी चीज़ को करना जिसको आप खुद एंजॉय नहीं कर रहे, वो चीज़ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम और एक मैराथन की तरह एग्जाम है। आपको लगातार कई घंटे, जैसे मैराथन में भागना पड़ता है, आपको इसमें कई साल आपको उतनी ही मेहनत रोज करनी पड़ती है। तो अगर आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं और आपको बिल्कुल प्रोसेस से अब तक मजा नहीं आ रहा, ये तैयारी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कभी किसी के बोलने पर, किसी के प्रेशर में तैयारी को ना करें। इफ यू आर हाईली इंस्पायर्ड एंड एंथुजियास्टिक और अगर आपको तैयारी में मजा आ रहा है तब इसमें घुसे। अदरवाइज ये एक बहुत ही लंबी टायरिंग जर्नी है और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड्यूरिंग जर्नी। पर अगर आप इसको पसंद करेंगे, प्रोसेस से मजा आएगा आपको, तो सक्सेस भी आई थिंक आपकी श्योर शॉट है। नहीं, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका, क्योंकि इत्तेफाक से मैं भी एक समय यूपीएससी एस्पिरेंट था, तो आई ऑल्सो रिमेंबर दैट अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो यू विल नॉट गिव योर 100%। एंड वो मज़ा तभी आएगा जब इंट्रिंसिकली यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी एज वेल एज द एंड आउटकम। कोई बोलेगा, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया या आपके फ्रेंड्स ने कर दिया, उसके बेसिस आई थिंक आप नहीं कर पाएंगे इस पे। दिस इज ट्रू फॉर नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, हाँ, मतलब इन जनरल लाइफ में सक्सेस के लिए उस पर्टिकुलर चीज में मजा आना बहुत जरूरी है। और जब आपको उस प्रोसेस में मजा आने लगता है तो वो चीज आसान हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। सो फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स पे, उसके अलावा भी बच्चों से मेरा ये बोलना है कि आप उसी चीज को करें जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो, क्योंकि आप अगर आप यू आर लविंग द प्रोसेस ऑफ इट, आपकी सफलता जरूर मिलेगी आपको। नहीं, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स कि सफलता तभी मिलेगी जब आपका उसमें मन लग रहा है। तो राइट, आप एक ही करके बात करते हैं फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। आपने बताया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है जिसमें एक जनरल स्टडीज और जीएस का एक पेपर होता है, एंड देन देयर इज दैट क्वालिफाइंग पेपर ऑफ सीसैट जिसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट एसेंशियली हो रहा है। सो एक एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो आता है कि ओवर द इयर्स इट हैज़ बिकम इवन मोर टफर। So, how do you think that someone should approach the CSAT paper when it is becoming so tough and लोग qualify ही नहीं कर पाए despite of giving their all best in the general studies paper essentially? देखिए, अगर पेपर टफ भी है तो मैं मानता हूँ सबके लिए टफ है, केवल किसी एक पर्सन के लिए टफ नहीं, सभी के लिए टफ है। सेकेंडली, अगर आप कोई एग्जाम को परस्यू कर रहे हैं, सो वी हैव टू बाउ डाउन टू दैट एग्जाम और उस इंस्टीट्यूशन को जो उस एग्जाम को रेडी करता है। तो अगर किसी को लगता है कि पेपर बहुत टफ बन रहा है, तो मेरा तो उनको बोलना है कि आप अपनी मेहनत उस तरह करिए कि क्योंकि आप सबके लिए टफ है, केवल आपके लिए टफ नहीं, सभी के लिए टफ है, सभी के लिए वही पेपर आ रहा है। और अगर हम क्वेश्चन पेपर को जिसको हमें क्लियर करना है या उस इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करेंगे जो वो पेपर सेट करता है, तो सक्सेस कितनी मिलेगी मुझे समझ में नहीं आता। वी हैव टू बाउ डाउन टू दैट एग्जाम, वी हैव टू बाउ डाउन टू दैट प्रोसेस एंड वी हैव टू बाउ डाउन टू दैट इंस्टीट्यूशन विच इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम। सो अगर पेपर टफ आ रहा है तो प्लीज़ आप उसकी तैयारी करिए, और सभी के लिए टफ है। एंड अगर टफ पेपर आने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उनको सोचे कि आखिर उसने या दूसरे बच्चे में ऐसा क्या था या उसने ऐसी क्या मेहनत कर ली थी जिसकी वजह से ये टफ पेपर उसको टफ नहीं लगा या उसका क्लियर हो गया और मुझे टफ लगा। तो हो सकता है उससे आपका प्रोसेस या आपकी जर्नी 1-2 साल डिले हो जाए, यही हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ दैट जर्नी यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यू विल इमर्ज आउट एज अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कुछ पेपर टफ है, आप ये इंश्योर करिए अगले साल, अगले अटेम्प्ट में पेपर आपको टफ तो बिल्कुल ही ना लगे बल्कि इजी लगे। So that is about the CSAT paper. I think काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि मेहनत उतनी करिए जितने में आप अच्छे से नंबर ला पाए। डोंट ब्लेम द सिस्टम की तो डिफिकल्ट होता जा रहा है तो हम कैसे करेंगे। कमिंग टू द जीएस पेपर, आई थिंक उसमें जनरल स्टडीज है इन द प्रीलिम्स एंड उसी टाइप का सिलेबस एंड इनफैक्ट सम मोर सब्जेक्ट्स आर इन द मेंस एग्जाम आल्सो। सो थोड़ा अगर कंपैरिजन बताएं कि हाउ इज द सिलेबस और द अप्रोच फॉर प्रीलिम्स डिफरेंट फ्रॉम मेंस एंड हाउ डज वन अप्रोच बोथ ऑफ द एग्जाम्स? सो आई थिंक हमें प्रिपरेशन को टोटलिटी में ही देखना पड़ेगा। यस, अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट आप मान के चलें कि जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी इज वन पार्ट इन प्रीलिम्स, बट GS2 के पेपर में पॉलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स है तो GS3 में इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ही आता है। अगर साइंस है
प्री में तो अगेन GS3 के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के होता है। अगर ज्योग्राफी है तो GS1 के पेपर में, और हिस्ट्री भी GS1 के पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो प्रीलिम से एक बेस बनता है, प्रीलिम फैक्चुअल होता है, बट मेंस आर्टिकुलेशन होता है। आपको वही चीज़ें आर्टिकुलेट करनी है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें बतानी होंगी, इम्पैक्ट भी बताना होगा, एनालिसिस भी करनी होगी, क्रिटिसिज्म भी करने होंगे, और इंटरलिंकेजेस करने होंगे, विद इन दी सब्जेक्ट्स इंटरलिंकेज करना होगा, और इंटर सब्जेक्ट भी इंटरलिंकेजेस करने होंगे। और आपको सिमिलरली ऑप्शनल के साथ भी GS का इंटरलिंक करना पड़ेगा। GS ऑप्शनल, तभी वो आंसर भी होलसम और बहुत ही मीनिंगफुल बनेगा। तो तैयारी तो इंटरलिंक्ड है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रीलिम्स होने के 3 महीने पहले आप मेंस को ना देखें, आप केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं होगा तो फिर मेंस अपने आप ही आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो और जैसे ही आपका प्री खत्म होता है, इसके पहले कि आप रिजल्ट का वेट करें, इसके पहले कि जो भी इसका आने वाला है, आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एक करीब 25 से 30 दिन बाद प्री का रिजल्ट आता है, और काफ़ी समय लोग का चला जाता है केवल ये सोचने में कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखें, और उसी दिन से आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि बाकी लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अपना, क्या पता केवल आप ही टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और ये अल्टीमेटली कंपटीशन है, और मेंस लिखने का मौका भी बार बार लोगों को नहीं मिलता है। तो खास करके जो बच्चे मेंस लिख रहे हो, वो अपना 100% टाइम डिवोट करें केवल मेंस की तैयारी के लिए। और इसके बाद इंटरव्यू में भी आपसे सवाल तो मोस्टली पूछे जाते हैं आपके खुद के बायोडाटा से जुड़े हुए, और उसके अलावा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स के होते हैं, या आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, या आपकी इंजीनियरिंग से जुड़े हुए होते हैं, या आपके ग्रेजुएशन से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपको इसमें बड़ा मदद करता तो शक्ति, आपने बताया कि सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, राइट? बट आई वुड लाइक टू डबल क्लिक ऑन द इंटरव्यू इटसेल्फ। सो फर्स्ट अगर आप बता सकें, आपने 2 इंटरव्यूज दिए, है। आपने 3 3 इंटरव्यूज दिए आपने, अच्छा, ओके। तो 3 इंटरव्यूज दिए, तो तीनों इंटरव्यूज की जो आपकी जर्नी रही है, थोड़ा आप बताएं कि हाउ डिड यू इम्प्रूव ईयर ऑन ईयर, एक तो वो, एंड किस टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे गए ओवर द इयर्स? सो तीनों इंटरव्यूज मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। एक बड़ा जब मेरा पहला इंटरव्यू था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब इंटरव्यू दिया था, तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। कोई मैंने मेडिसिन अपने फेस पे लगा ली थी, और मेरा पूरा फेस रेड हो गया था। माई फेस वॉज बर्नड एक्चुअली, और इट जस्ट हैपेंड 3 days बिफोर द इंटरव्यू। वो जो दवाई मैंने लगाई थी, वो एक एंटीसेप्टिक थी, वो एक्सपायर्ड थी। ओह, देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, एंड काफ़ी दवाई दी, बट इट वॉज नॉट ओके, इट टुक सेवरल मंथ्स टू बी ओके। तो मैंने उस बर्न फेस के साथ पहला इंटरव्यू दिया अपना, और शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी उस समय नहीं उतना रहा होगा। आई डिड नॉट गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट इंटरव्यू, और सिलेक्शन भी उस समय मेरा नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम मैंने अपना इंटरव्यू दिया, इट वॉज अ बेटर इंटरव्यू देन द प्रीवियस अटेम्प्ट, और IRS में हुआ। जो थर्ड इंटरव्यू भी था मेरा, वो उसी बोर्ड के साथ था जिसमें जिसने मेरा सेकंड इंटरव्यू लिया था, बट सेकंड इंटरव्यू में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे। सो इट वॉज अमंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट, आई से 1.5 to 2 hours ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, और आप पूरे साल ये सोचते हो कि काश नंबर बेटर आ गया होते, तो शायद एग्जाम ही ना देना पड़ता फिर से, और आपका फिर से वही बोर्ड आ जाए, तो और यही आप मनाते हो कि वो बोर्ड फिर से ना आए, क्योंकि उस बोर्ड ने आपको नंबर अच्छे नहीं दिए थे इसके पहले वाले अटेम्प्ट में, इसीलिए मुझे फिर से इंटरव्यू देना पड़ रहा है। और उसके बाद आप पता लगता है आपको एग्जाम इंटरव्यू हॉल में कि आपको फिर से वही बोर्ड मिल गया। इट्स अ वेरी वेरी आई थिंक इट वॉज अमंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट कपल ऑफ आवर्स ऑफ माई लाइफ। आई थिंक मेरा नंबर 5th था उस दिन, और जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड रिकॉग्नाइज मी, पहचान गए, आप वापस आप आ गए। सो एनीवे, इट वाज अ जॉली मूवमेंट। उसके बाद फिर इंटरव्यू चला मेरा, और इंटरव्यू ठीक चला, मतलब आई वाज वेरी न्यूट्रल अबाउट द इंटरव्यू, बिकॉज इतने तीसरा इंटरव्यू था मेरा, तो बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं होता है, बहुत टेंशन भी नहीं होता है, बट अगेन ये तो ज़रूर रहता है कि पिछली बार नंबर अच्छे नहीं आए थे, इस बार क्या होगा। इंटरव्यू ठीक रहा था। लास्ट में ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो मैं ज़रूर बताऊंगा अपने व्यूअर्स को, कि ही सेड कि आपका जो फेस है वो शर्मा जोशी से बहुत मिलता जुलता है। सो आई सेड ओके, a lot of people have told me this is not the first time somebody said this. So I said हाँ sir, मतलब I've heard this ever since my school days. फिर he said कि you remember there's a movie in which he was there,
and he was giving a similar interview जिस तरह आप इंटरव्यू दे रहे हो. I said yes sir, Three Idiots was the movie जहाँ पे similar experience था. He said, can you narrate me the entire incident which happened in the movie? तो I said okay sir, I'll try my best. तो जब वो इंसिडेंट हो रहा होता है तो he suffers an accident. हाँ हाँ करेक्ट. और उसके बाद उससे सवाल पूछते हैं वो, तो उनका जवाब जो होता है शर्मा जोशी का, वो ये होता है कि सर आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रख लेता हूँ. सो आई नरेटेड दैट एंटायर इंसिडेंट. तो इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू से इन एन इंटरव्यू कि आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए, अपना एटीट्यूड अपने पास रख लीजिए. सो आई नरेटेड एंड इट वाज अ वेरी जॉली मोमेंट. तो आई थिंक दैट वाज द एंड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू. देन आई केम बैक. बट थर्ड इंटरव्यू था मेरा. 2 इंटरव्यू में कभी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बड़े एवरेज मार्क्स ही आए थे. तो मतलब आई वाज नॉट वेरी होपफुल. बोर्ड भी सेम था स्टिल, but luckily I got 190 marks, which was amongst the highest marks that board gives to anybody. बड़ा अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे थे, and brought me to the service. So ऐसे थे इंसिडेंट्स, और भी इंसिडेंट्स होते थे. इंटरव्यूज वर वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. हाँ मतलब क्योंकि आई थिंक दिस विल आल्सो गिव इनसाइट इनटू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, राइट. सो क्योंकि बहुत बार हम लोग न्यूज़ आर्टिकल्स में या फिर सोशल मीडिया में देखते हैं कि बहुत ही फंडू सवाल कुछ पूछ लिए इंटरव्यूज में. तो आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंसेस. एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो द चेयरपर्सन आस्क्ड मी कि यू आर इनटू थिएटर एंड ड्रामेटिक्स. मतलब यस सर. बोलता ओके, राइट मी अ स्ट्रीट प्ले राइट नाउ on this particular issue. So I took the pen, I wrote a few lines which I narrated. So कई बार ऐसे impromptu सवाल भी होते हैं. But the idea is कि वो आपको शुरू के, खास करके शुरू के सवालों में they try to judge you. And generally शुरू में लोग थोड़े से nervous भी होते हैं. तो वहाँ पर one has to be at ease. And उस समय शुरू के at least 5 मिनट में one has to be very proactive. And हमेशा हर क्वेश्चन जो इंटरव्यू का होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है 6 मारने की, मैं मान के चलता हूँ. एवरी क्वेश्चन वो आपसे केवल आपको समझने के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं. तो आपको उसमें खुद को कितना अच्छे से पोर्ट्रे करना है, खुद को कितना अच्छा एक्सप्रेस करना है, ये आपके हाथ में है. एवरी क्वेश्चन इज एन अटेम्प्ट टू नो यू, एंड एवरी क्वेश्चन फॉर अस इज अ बॉल फॉर विच यू हैव टू हिट अ 6. ये मैं मानता हूँ इंटरव्यू में. सो डोंट टेक एनी क्वेश्चन लाइटली. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, वन हैज टू टेक इट वेरी सीरियसली, एंड वो आपकी पर्सनैलिटी जज करें. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज दिस बोर्ड, मेरे जो बोर्ड का, वो हमेशा आके सवाल पूछते थे. वो सवाल आखिर ये पूछते थे कि इसके बाद आप जाके क्या करोगे. तो आप अपना जो भी आप जवाब दें उस जवाब दें. मेरा जवाब हमेशा, मतलब हमेशा क्या, वो रियलिटी भी थी कि ऐसा सर मेरा दोस्त का कल इंटरव्यू है, सो आई विल गो एंड शेयर हिम. सो उससे ये दिखता है कि आप बाद में, मतलब आई रियलाइज कि ये सवाल से भी दिखता है कि यू हैव अ कंपेनियन की क्वालिटी भी आपके अंदर, एम्पैथी भी है. सो एवरी क्वेश्चन take it as an opportunity to give the best answer. Got it. And very interesting. I think काफी interesting anecdotes हैं from your interview experience. So holistically अगर हम देखें, how what would be 1 or 2 big advices you would want to give to any aspirant for who is pursuing this journey of civil services? So सबसे बड़ी एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि इस एग्जाम में जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है द एबिलिटी टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. इस एग्जाम में आपको किताबें तो लिमिटेड ही पढ़नी है, लेकिन उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ना है. तो खास करके इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उन्हीं सेम चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करें. और रिवीजन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू रीड द सेम थिंग एंड अगेन एंड अगेन, बट दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट. एंड इसीलिए कम लोग कर पाते हैं और उनको सक्सेस मिल पाती है. सेकेंड जो मेरे आपको एडवाइस होगी वो होगा कि आप टेस्ट सीरीज बार बार लगाएं. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विच इज़ लार्जली ट्रू. और मैक्सिमम टेस्ट सीरीज लगाएं. आपको क्वेश्चन आंसर वाले मोड में जब एग्जाम की तैयारी में आ जाएंगे तो आपको हर चीज़ क्वेश्चन लगेगी और आपके दिमाग में उसका आंसर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा. तो टेस्ट सीरीज आप मैक्सिमम लगाएं. और तीसरी चीज़ ये कि आप इतनी मेहनत करिए कि आपको बड़ा टेंशन लेने का भी टाइम ना हो. एक जिस कोचिंग में मैं जाता था वहाँ पे जो उनके सबसे अच्छे टीचर थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि अगर आप टेंशन में हैं यानी आप मेहनत कम कर रहे हैं. तो आप जब ज़्यादा टेंशन में आप सोचने लगो कि आप मेहनत कम कर रहे हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करोगे तो आपको टेंशन लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा. तो ये बात मुझे भी काफ़ी कई बार लगती थी कि मैं सोचता ही नहीं था कि नहीं होगा. क्योंकि अगर आप ये सोच भी रहे हो कि आपका नहीं होगा तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यानी उतने टाइम आप मेहनत नहीं कर रहे हो. तो आप इतना ज़्यादा तैयारी में घुस जाओ कि आपके दिमाग में थॉट ही ना आए कि इफ़ नॉट दिस देन व्हाट. मेरा पॉइंट है कि आप व्हाट नेक्स्ट सोचे ही मत, आप केवल एग्जाम में ही लगे रहिए. मेक सेंस. नहीं, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. आपने स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि
what should be the motivation for someone to get into this into the preparation? It should be intrinsic, and then I think later on you now mentioned about कि कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए. I think quite insightful for our viewers. Um, next aspect which I like to now ask about is your time in training. क्योंकि एक बार आप जब you know when you entered the police services, right? कैसा रहा आपके फर्स्ट फ्यू डेज इनटू आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि फाउंडेशन कोर्स जो है वो लबासना में होता है, देन देयर आर डिफरेंट फेजेस. सो इफ यू कैन जस्ट टेल फॉर आवर व्यूअर्स व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस एंड देन हाउ योर एक्सपीरियंस वाज इनिशियली. So the training starts somewhere in the end of August. Okay. 15 हफ्ते का एक फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब एक साथ 15 वीक्स के लिए ट्रेन होती है. फाउंडेशन कोर्स में सभी सर्विसेज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है और सभी सब्जेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया जाता है. लार्जली उसमें जो हमने सिविल सर्विसेज में पढ़ा है वो भी होता है. उसके अलावा काफ़ी नई चीज़ें भी होती हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में होनी ज़रूरी होती हैं. ऑफिशियल चीज़ें भी काफ़ी सारी बताई जाती हैं. प्लस केवल क्लासेस नहीं होती, उसमें ट्रैक होते हैं, विलेज विजिट होती हैं, कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं. एक केवड़िया में जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी वहाँ पे 10 दिन का वर्ल्ड बैंक से टाई अप के साथ एक 10 डे सेशन होता है. इसमें वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी विजिट, एक उनकी विजिट भी होती है. तो ऐसे कई सारे एक्सपोजर होते रहते हैं. इसमें अलग अलग सर्विसेज के लोग आकर आपको अलग अलग सर्विसेज के बारे में बताते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू नो कि बाकी सर्विस वाले क्या करते हैं. बाकी सर्विस वालों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और वो जॉब में बहुत हेल्प करती है, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. और उसके बाद 15 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद सब लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमीज में जाते हैं. जैसे आईपीएस की अकेडमी हैदराबाद में है और अमंग्स द बेस्ट फैसिलिटीज़ नॉट जस्ट इन द कंट्री बट अक्रॉस द वर्ल्ड. आईपीएस ट्रेनिंग अकेडमी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है. यू हैव सीन. हाँ, so मैं वही कह रहा था कि लास्ट ईयर I was there with you in the academy. So it's a brilliant academy, not just in terms of the infrastructure, but otherwise in terms of all the services they provide. Yeah. Uh, it's a world-class facility, and not just IPS academy. Academies of almost all the services are very very good. मैं IRS academy में भी NADT जो नागपुर में academy उसमें भी I've been for almost 9 months. Again one of the pioneer academies of the country, जिसमें करीब करीब बहुत ही सारी सुविधाएं हैं. It helps not just in the academic development but also in the overall development, personality development of the officer training. तो सभी अकेडमीज जो बनी हैं उनकी ट्रेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल की होती है. 1.5 साल में कुछ कंपोनेंट उनका फील्ड पे होता है, कुछ कंपोनेंट एकेडमी में होता है, बट बाय एंड लार्ज 1 साल एकेडमी का टाइम करीब करीब सभी का होता है. फिर वो लोग फील्ड में आते हैं और उसके बाद अपनी फील्ड की लाइफ स्टार्ट करते हैं. आईपीएस की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हम लोग को दिए जाते हैं. और एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड ऑन द वीडियो, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड और हर चीज़ बहुत फेयर होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट होती है और इसीलिए बहुत मुश्किल भी होती है. आज जैसे आईपीएस की अकेडमी में सिंस यू हैव सीन द अकेडमी बहुत सारे टास्क होते हैं. एक 40 किलोमीटर का रूट मार्च करना होता है विद 15 kg ऑफ लगेज एट द बैक एंड 6 kg की राइफल आपको कैरी करनी है फॉर अराउंड 9 hours. एक 16 किलोमीटर की रन होती है विच यू हैव टू कंप्लीट इन अ गिवन टाइम. बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्सेज होते हैं विच इज़ जनरली देन द आर्मी बट हम लोग को भी पढ़ाए जाते हैं. एवरी मॉर्निंग वी हैव टू वेक अप एट 5 एंड वी आर बिजी कंटिन्यूसली अंटिल 7 AM इन द इवनिंग. कुछ ना कुछ एक्टिविटी लगी रहती है. हॉर्स राइडिंग होती है, उसकी भी अराउंड 40 क्लासेज होती हैं, उसका एग्जाम भी आपको क्लियर करना पड़ता है. स्विमिंग होती है 50 मीटर्स की स्विमिंग होती है. एक ट्रायथलॉन होता है जिसमें आप 1 किलोमीटर स्विमिंग करते हैं, 40 के साइकिलिंग करते हैं, 10 के रनिंग करते हैं और एक के बाद एक करते हैं. अब तो मैराथन भी होने लगी है. 2022 में आई कंप्लीटेड हैदराबाद मैराथन 42 किलोमीटर्स की मैराथन थी. दो इट्स ऑप्शनल बट वो धीमे धीमे सभी करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट द एंटायर अकेडमी इज डूइंग इट. तो लॉट ऑफ फिजिकल चैलेंजेस तो बहुत होते हैं और कम्प्लीटली आप ऑक्यूपाइड रहते हैं. 5:30 से लेकर 7:30 तक पहले मॉर्निंग में वर्कआउट्स होते हैं. फिर थोड़ा देर का आपको ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता है. फिर 9 बजे से क्लासेस होती हैं, वो 1:30 पौने 2 बजे तक क्लासेस चलती हैं. आधे 1 घंटे का लंच का ब्रेक होता है. फिर 3 बजे से फिर से क्लासेस होती हैं, वो चलती हैं शाम 6 साढ़े 6 बजे तक. देन 6-6:30 में बात कुछ जनरली कुछ होता ही है. तो इट्स अ वेरी वेरी हेक्टिक शेड्यूल जहाँ पर आप सोने का भी आपको टाइम बहुत कम मिलता है, 4-5 hours ओनली. सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दैट, बट जो पर्सनैलिटी आपकी तब बिल्ट होती है, बहुत चीज़ें सीखते हैं. जैसे कि हम लोग अनआर्म्ड कॉम्बैट भी सीखते हैं जिसमें जो कराटे समझते हैं वो भी सिखाया जाता है. आपने कौन सा विंगशुक? अच्छा, ओके. विंगशुक कहते हैं हम लोग को, वो सिखाया गया था.
स्विमिंग में हम लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं, काफ़ी स्विमिंग होती है वहाँ पे। उसके अलावा फायरिंग करीब करीब जितने भी एज ऑफ नाउ वेपन्स हैं इंडिया में, चाहे वो कोई भी फोर्स इंक्लूडिंग आर्मी यूज़ कर रही हो, हम लोग सभी की फायरिंग करते हैं, इंक्लूडिंग रॉकेट लॉन्चर। हम लोग ओह रॉकेट लॉन्चर भी फायर करते हैं, ओके मोटार भी फायर करते हैं, हाथ से हैंड ग्रेनेड भी फेंकते हैं। और जो उसके अलावा जो गन्स आपको दिखती हैं, चाहे वो AK हो, इंसास हो, उनकी फायरिंग भी होती है, पिस्टल, रिवॉल्वर, MP5, सभी गन्स की फायरिंग भी होती है। तो इट्स अ वेरी वेरी होलसम एक्सरसाइज। हाँ और आई थिंक ट्रेनिंग तो हमारी इरिप्लेसेबल है। बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत ही टफ टास्क होते हैं, रोप चढ़ना, रोप से उतरना, डिफिकल्ट, बट हम लोग को मेंटली ट्रेन किया जाता है ताकि कभी भी ऐसी कोई चीज़ आए तो वी आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। गॉट इट। नहीं, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बट आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर्ड दैट देयर सो मेनी थिंग्स। So many things are difficult. I think the most difficult part is to wake at 5 a.m. every morning राइट। without a fail। मतलब अगर रात में हम 2 बजे भी लौट रहे हैं किसी चीज़ से तो भी हमको 5 बजे उठना ही है। कई बार हम लोग रात में किसी नाइट एक्सकर्शन पे निकल रहे हैं या राउंड पे निकल रहे हैं। काफ़ी एक्टिविटीज़ नाइट की भी होती हैं। कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, जो ट्रेजर हंट होता है नाइट में, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें ढूंढनी होती ट्रेजर हंट थोड़ा है। जैसे अकेडमी काफ़ी बड़ी है, हाँ। अराउंड 300 एकड़ की अकेडमी है, तो जंगल भी काफ़ी है उसमें। सो वो टास्क होते हैं, उस टास्क को आपको फिगर आउट करना है, फिर कहीं जाना है अंधेरे में, वहाँ पर उस चीज़ को फिगर आउट करना है, फिर उससे आपको अगला क्लू मिलेगा तो आप अगले क्लू पे जाएंगे। वो पूरी पूरी रात होती है एक्सरसाइज। ग्रेहाउंड अटैचमेंट होता है जिसमें हम लोग 1 हफ्ता जंगल में ही रहते हैं, और वहीं पर हमको खाना बनाना है, वहीं पर टेंट लगाना है, वहीं पर पानी नदी से निकाल के पीना है, और रात में बारिश आ जाए तो कैसे उससे बचना है। So is this Greyhound inspired from the anti-Naxal Yes, yes. force? तो तेलंगाना में हाँ हाँ और करेक्ट। अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो अभी चल रही ग्रेहाउंड फोर्सेस, उन्होंने नक्सलाइट्स को बाहर निकालने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। सो सिंस एकेडमी भी हैदराबाद में है, सो वी हैव अ टाई अप विद दी Okay. ग्रेहाउंड्स जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे जो जंगल है, वहाँ पर हम लोग 1 हफ्ते रहते हैं, एंड इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। Yeah. और वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो, बट वेरी यूनिक एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। I'm like I'm sure that काफी mentally and physically torturing लगता होगा, but I think once you are through with it काफी interesting experience रहा होगा। बिल्कुल, जब मैराथन हम लोग कर लेते हैं उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। इफ समबडी कैन रन फॉर 42 किलोमीटर्स, आई डोंट थिंक फिजिकली डरना उसके बाद एक चीज बच जाती है। प्लस जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह है, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए काफी हेल्प करती है। बहुत चीजें ऐसी। So I think last question from this segment for you would be that जो जितने भी आपने ट्रेनिंग में चीजें सीखी, चाहे वो आर्म्स एंड एम्युनिशन की हो, हॉर्स राइडिंग हो, लाइक आपके दौड़ भागना हो, या फिर अलग कम्बैट ट्रेनिंग्स रही हो, जो आप जो 3-4 साल ऑन द जॉब रहे, ऑन द फील्ड रहे, तो डिड एनी ऑफ दोज कम हैंडी इन सम सिचुएशंस जहाँ पे लगा कि यार ये पहले मैं नहीं कर सकता था अगर मैं ये ट्रेनिंग नहीं करता तो? ये लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली हेल्प। कई बार तो हम लोग ट्रेनिंग को में बहुत चीजें ढंग से नहीं देखते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि काश हमने ट्रेनिंग में वो चीज ढंग अच्छा। से देख ली होती। हाँ हाँ। जैसे कि IT जो डिपार्टमेंट है एनवीए का, इट इज एक्सेप्शनल। जितना IT इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, या जितना साइबर पे वो पढ़ाते हैं, कई बार हम लोग क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स, कई बार हम चीज़ों को उतना OTs ही होते हैं, उसको कई बार समझ नहीं पाते, ग्रास्प नहीं कर पाते। बट हम लोग जब फील्ड में आते हैं हम रियलाइज करते हैं कि काश हमने वो चीज़ और ढंग से उस समय देख ली होती। तो आई थिंक ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी रियलाइज आफ्टर वी कम ऑन द फील्ड। फिर हम लोग वी कम कनेक्ट बैक टू दी पीपल हु हैव गिवन अस द ट्रेनिंग इन NP, एंड देन वी रियलाइज कि आपने सर एक दिन ही पढ़ाया था क्लास में, कैन यू प्लीज टेल अस अगेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था वो। तो फिर वो हमको बाद में भी हेल्प करते हैं, राइट। जो वहाँ की फैकल्टी है। सिमिलरली इवन फिजिकल स्टैंडर्ड्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई VIP विजिट है, और उसके लिए आपको 1 ही घंटे खड़ा रहना, 2 घंटे खड़ा रहना पड़ा, या बड़े बड़े बंदोबस्त होते हैं, चाहे वो रामलीला मैदान पे रामलीला, ह्यूज क्राउड, वी हैव टू स्टैंड फॉर मल्टीपल आवर्स। बट वो ट्रेनिंग होती है, हम लोग वी आर रेडी टू मतलब बियर दैट, एंड वो तभी हो पाता है जब हम लोग को उतना स्ट्रांग वो फिजिकली के अलावा मेंटली भी बनाते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ तो कई बार लोगों की ओवर द टाइम वीक हो जाती है, पर क्योंकि मेंटली आप होते हो कि आपको पता होता है कि मैंने इतना तो किया ही था, तो फिर से हो जाएगा। Right. तो वो बड़ा हेल्प करता है। राइट।
सही आई थिंक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया अबाउट योर जर्नी ऑफ आईपीएस क्रैकिंग द एग्जामिनेशन एंड देन ऑन द जॉब आपने जो डिफरेंट डिफरेंट रोल अदा किए हैं. would now I think for our viewers would want to know you a little more personally, right? मैं तो आपको जानता हूँ because we know us each other from quite some time, but I think for our viewers would like to know a little bit more personally. So my first question in that regard is that आप लखनऊ से belong करते हैं, so as a kid how were you like and कैसे आप किस टाइप के बच्चे थे आप? सो मेरे बर्थ प्लेस लखीमपुर खीरी है. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन हाँ नियर लखनऊ. हाँ वहाँ पर भी गोला एक जगह है, वेरी तहसील है. वहाँ पे मेरा जन्म भी हुआ और बाद में मेरी बचपन वहीं भी था. देन फैमिली शिफ्ट टू लखनऊ. पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, कई जगह उन्होंने जॉब करी, बट मैं मोस्टली लखनऊ, बाद में रांची में और दिल्ली में, इन तीन जगह जाता रहा हूँ. सो लखनऊ पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई एंड माई चाइल्डहुड वॉज लाइक एन एवरेज चाइल्डहुड. ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में तो मेरा मन नहीं लगता था, बट आई वॉज वेरी मच इन टू स्पोर्ट्स, आई वॉज वेरी मच इन टू म्यूजिक, इन टू सिनेमा. मुझे ऐसी चीज़ें करनी बहुत पसंद थी. And but over the time जब I realized कि education is very very important in the career, तो 9th-10th में आके I got serious towards education and उसके बाद वहाँ भी ठीक किया मैंने. But मेरा बचपन जो था it was a very, I was very notorious also and very talkative also and I was more into arts, musics. मुझे काफ़ी पसंद था. अच्छा हाँ. so इसी से रिलेटेड है कि आपने बताया आर्ट एंड म्यूजिक में आप थे, तो what are the other hobbies that you have pursued over the years? जैसे टेनिस इज Okay, so sports में आप हैं. स्पोर्ट्स हूँ, क्रिकेट भी ठीक ठीक खेल लेता हूँ मैं, हाँ, हाँ. बट अभी मैं टेनिस को परस्यू करता हूँ एक्टिवली. आई ट्राई टू गो टू जिम एवरी मॉर्निंग. कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल लूँ. राइट 8 से लेकर 9 बजे के बीच आई ट्राई टू रन फॉर 1 hour एवरी डे. अभी भी आज मॉर्निंग में भी आई रन फॉर 1 hour, तो मैं कोशिश अच्छा, करता हूँ okay. 1 घंटा जरूर रनिंग करूँ रोज. अरे वाह. उसके अलावा आई लाइक रीडिंग बुक्स, वॉचिंग आजकल वेब सीरीज OTT पे. तो ये मेरे कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं आजकल आप? आजकल मैं अभी रिसेंटली मैंने वेब सीरीज देखी है, हिरार्की वेब सीरीज आई थी, कोरियन वेब सीरीज है, तो अभी वो देखी रिसेंटली. बिग बैंग थ्योरी देखता रहता हूँ मैं, बीच बीच में एपिसोड देखता रहता हूँ. Is that your go-to sitcom, Big Bang Theory? नहीं हाँ मतलब फ्रेंड्स एंड बिग बैंग. Friends, of course, right. So now in terms of hobbies, आपने बोला कि आप you're into sports, right? So like do you follow the cricket also? हाँ देखते हैं आप? कोशिश करता हूँ मैं. मुझे तो वर्ल्ड कप फॉलो कर पा रहे हैं आप? कोशिश करता हूँ कि अगर रात में मैचेस होते हैं तो एटलीस्ट सेकंड इनिंग्स देख लूँ. सिमिलरली यूरो कप स्टार्ट हो गया है, राइट. तो दो इट्स वेरी लेट इन द नाइट, हाँ बट कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट अपडेटेड रहूँ. तो आई ट्राई टू फॉलो स्पोर्ट्स अभी भी. अच्छा. आई थिंक ऐसी ज़रूर लोगों को हॉबीज होनी चाहिए. करेक्ट. खास करके म्यूजिक, मुझे लगता है कि आई वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो Okay. सभी तरह के म्यूजिक जरूर सुनता हूँ मैं. Do you play an instrument? नहीं, आई डोंट प्ले एनी अच्छा, इंस्ट्रूमेंट, आई ट्राई टू सिंग, Okay, okay. बट वैसे आई डोंट प्ले. Okay. All right. So now coming to some of the values that you consider very very dear to yourself throughout life. So अगर कुछ बता सके हमारे viewers को कि कैसी values आपको सबसे अच्छी लगती हैं? आई थिंक सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी आर द 2 वैल्यूज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर इफ समबडी इज वेरी सिंसियर एंड वेरी पंक्चुअल एंड वेरी डिसिप्लिन्ड, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. सिंसियर डिसिप्लिन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में भी, सपोज यू हैव गिवन टाइम टू समबडी, तो आप उसी टाइम पे पहुंचिए, या आपको मीटिंग रखी तो ज़रूर उस टाइम पे टाइम पहुंचिए. सो दिस इज आई थिंक सिंस, और वही चीज़ फिर वो अगर कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होने लगती है तो वो आपकी पढ़ाई में या आपके एग्जाम्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी. करेक्ट. उसके अलावा मुझे लगता है कि जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में. अगर कोई भी पर्सन अपने गोल के प्रति बहुत ही डिसिप्लिन है तो सफलता इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सक्सेस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और ये आई थिंक ये मेरी जो फेवरेट क्वालिटीज है वो यही है. और खास करके यूपीएससी के लिए परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. आपको लगातार लगे रहना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम में सब कुछ आपके हाथ में नहीं है. मेहनत तो अपने हाथ में है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, खास करके लक प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन दिस एग्जाम. 275 मार्क्स तो केवल इंटरव्यू भी है, और उसमें अगर आपके 2 नंबर भी इधर से उधर हो जाएंगे तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. तो लक आपके हाथ में नहीं है. उस समय जो आपका एटीट्यूड है, परसिवरेंस है, वो बहुत काम आता है. तो आई थिंक ये कुछ 3-4 क्वालिटी है जो बहुत ही important thing. Right. So personally, what any individual, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो अभी प्रेजेंट में हो, that really inspires you a lot? मेरा इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन. I don't inspire, I don't get inspired from personality, I get inspired from the traits of their personalities. बहुत सारी पर्सनैलिटीज है ऑनेस्टली, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उन पर्सनैलिटीज ने जो क्वालिटीज दिखाई हैं उन क्वालिटीज को अपनाऊं. तो
लॉट ऑफ पर्सनालिटीज हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क, बट बहुत सारी पर्सनालिटीज जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम भी किया उनका कुछ एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जो विच माइट बी कंट्रोवर्शियल. सो मेरा लोगों को बोलना भी होता है कि गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दी वैल्यूज, गेट इंस्पायर्ड बाय द क्वालिटीज. और उसके बाद फिर सो मेनी पीपल टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, सो मेनी Any examples that you can put? lot of people, मतलब so many people in India only, starting from Gandhi ji. तो इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, they have given so much contribution to where we are right now. I mean, जैसे इवन गांधी जी का नाम लिया तो his book which is My Experiments with Truth, so आप वो किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि how much somebody can speak truth about himself, right? So उनसे आप वो क्वालिटी जरूर देखिए कि वो खुद को कुछ समझने का और खुद की सच्चाई दिखाने का उन्होंने कितना प्रयास किया. तो what one needs to learn is how much to be truthful. तो उस तरीके से आप अलग अलग लोगों की बहुत सारी क्वालिटीज हैं which person should try to imbibe. Very interesting take on this, I think. Right. Also, so आप और आपकी वाइफ दोनों सर्विसेज में हैं, राइट? आपकी वाइफ आई थिंक वाज इन द पुलिस सर्विसेज विद यू इन 2019, साथ में आपका सिलेक्शन हुआ था, एंड देन शी गेव द एग्जाम अगेन एंड बिकेम एन IAS ऑफिसर. सो हाउ डज दैट डायनेमिक वर्क एट होम, कि आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी कभी पोस्टेड होते हैं, एंड द होल सिचुएशन ऑफ एक IPS है, एक IAS है? आई थिंक इट वर्क्स आउट वेरी वेल. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होती है जो मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप में सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, वी अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच अदर्स वर्क. हम समझते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरे दिन घर नहीं आना पड़ेगा, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल. या 2-3 दिन अगर बाहर हैं तो हम समझते हैं कि जॉब की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है जिसमें ये चैलेंजेस आते हैं. सेकेंडली, एक इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. मतलब हम कभी कोई चीज़ डिस्कस करें, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अस टू डिस्कस अपॉन इशूज़. और उसके बाद प्रोफेशनली भी हम काफ़ी सपोर्ट एक दूसरे को कर पाते हैं. बहुत बार स्पेशली IAS और IPS में तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सिमिलर भी होती हैं, और वही चीज़ों से वो भी डील करते हैं, हम भी डील करते हैं. बहुत सारे इश्यूज़ जो उनको डील करने चाहिए उनके पास लोग पुलिस के लिए आ रहे हैं, जो पुलिस के इशूज़ है उनके लिए लोग DM के पास जा रहे हैं. ऐसा बहुत कॉमन होता रहता है. जैसे लैंड रिकॉर्ड है, रेवेन्यू मैटर्स है. तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ. आई कॉल हर एंड आस्क कि ये मैटर ऐसा है, व्हाट शुड पुलिस डू इन दैट रिगार्ड. तो शी गाइड्स मी. सिमिलरली हमारे जो प्रोसेसेस हैं, बिकॉज फील्ड पे IAS और IPS में खास करके जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए. तो आई थिंक इट वर्क्स आउट वेरी वेल फॉर बोथ ऑफ अस, एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि because obviously you have a personal life at home, and professionally भी there might be a lot of engagement. जैसे for example अगर जैसे GST fraud case ही था, and there might be coordination required with different districts and different people across the state. So has there been a situation जहाँ पे आपने उनको खत लिखा है very formally, and आपकी interaction in a formal capacity हुआ है, and it was just a very interesting inside घर जाके काफी उस पे हंसी मजाक हुआ हो, कह रही देखो ये आज फॉर्मली हम लोगों ने ऐसे बात करी? नहीं, कई बार लेटर्स हम लोग आते रहते हैं. हाँ. क्योंकि हम लोग अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स लेटर लिखते ही रहते हैं. अच्छा. जैसे कि अगर हमारे कोई क्रिमिनल अगर उनके एरिया में रह रहे हैं, या कोई वारंट इशू हुआ है, और अदरवाइज भी बहुत चीज़ें होती है जो स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन होता है. तो हम लोग लेटर्स लिखते रहते हैं. कई बार लेटर्स हमको प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी मिलते रहते हैं, तो बहुत कॉमन है वो. कॉमन रहेगा. और खास करके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप हो तो ये कॉमन है. ऑफ कोर्स. क्यों लेटर ऐसे आते रहते हैं जो हम लोग वी सी एंड देन वी फॉरवर्ड इट जी to the respected officers. Right. Very interesting. Right. So now as we come to the end of the podcast, we have a last section which is a rapid fire round. So I'll be asking you a few questions, and जो दिमाग में आपके सबसे पहले आए वो आप quickly बताएं, and we'll just so उसको करते हैं. Right. Right. So the first question is, are you a morning person or a night owl? Definitely a night owl. Night owl. There is no doubt. कितने बजे तक सोते हैं आप रात में लगभग? 2 बजे के आसपास सोता हूँ, but I can stay awake all night also. But अपना होता है मुझे morning में, तो I try to stay by. So आपकी जो like बीटेक के टाइम से जो आदतें हैं वो आगे कंटिन्यू पहले से ही, मतलब. अच्छा, ओके. मतलब जैसे ही मुझे टाइम मिलता था, अगर एक दिन छुट्टी मिलती थी तो आई यूज्ड टू वेक अप एट 10 ओनली. अच्छा. ओके. सो आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? व्हाट इज फेवरेट कुजीन? माय फेवरेट कुजीन इज चिली पनीर. चिली पनीर. ओके. आई एम वेजिटेरियन, सो अच्छा. ओके. अगर एक सुपर पावर आपको मिलती तो क्या होती है वो सुपर पावर? सुपर पावर इज टू stop the world or take a deep breath and then let everything move. Okay. Do you like winters or summers? Winters. Winters. Any specific reason?
एक तो क्लोथिंग्स, मुझे विंटर्स क्लोथिंग, विंटर एसेसरीज काफ़ी पसंद है. अच्छा, So I think it adds to the flair and the style. राइट. Secondly, I think winters are much more in terms of coziness. पसंद है मुझे. तो in general जो atmosphere होता है, I like Right. Makes sense. Right. So do you prefer phone call or a text message? phone call. Phone call. अच्छा. I'm not really into texting. मतलब ये सब generally नहीं होता, but otherwise अगर कुछ होता है, I call them and tell the. So I'm more into, I like calls. अच्छा, अच्छा, अच्छा. नहीं तो clear things up. All right. Last question. लखनऊ पब्लिक स्कूल या BIT मेसरा? Okay, most difficult question. I'll prefer my college. कॉलेज. क्योंकि जल्दी नहीं उठना पड़ता था इतना इस तरह. कॉलेज में फिर स्कूल में उठना पड़ता. All right, all right, all right. Thank you so much, Thank you. Shakti, for being Thank here. you. It was a pleasure having you, and lovely talking to you, getting insights about your experience getting into services as well as post that. Any parting message you have for our viewers? Thank you, Venkatesh. It was a very nice experience. काफी लंबा हो गया, but पता नहीं लगा. It was a very very good interview also. Podcast बड़ा अच्छा रहा. और मेरे सभी व्यूअर्स से ये बोलना है कि एज अ पुलिसमैन विच आई से कि पुलिस से कभी भी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं. पुलिस इज अ फ्रेंड. हमेशा पुलिस को अपनी दोस्त की तरह बने. और कभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ऑलवेज कम टू द पुलिस, क्योंकि वी ऑल्सो रिकग्नाइज कि हम लोग का जो रोल है सोसाइटी में, इट इज़ एज अ फेलिसिटेटर. सो ऑलवेज अप्रोच एज योर फ्रेंड एंड वील बी ऑलवेज बी देयर टू हेल्प. उसके अलावा इफ देयर एनी डाउट रिलेटेड टू UPSC or to anything which is there in this podcast, you can reach out to me on the social media. Thank you. Thanks a lot for watching this episode of Sushaasan. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do not forget to like, share and comment. And for more such content, subscribe to the channel and hit the bell icon.